Okay, welcome class to another session, and we'll be continuing our lectures on different regulatory frameworks for achieving sustainable urban development or better urban management or better managing urbanization in a more sustainable manner. We'll be discussing that. So now let us go back and discuss on different types of development plans already there. So I just got some plans. I'll show you. So this is a master plan of Lahore. Okay, so this was in 1960s. This was the first master plan. Students, can you see the picture, the map? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, master plan for. So this was in 1916, which was led later. In 1980, the same plan. Basically, it was called structure plan at that time, and that was also made visioning that what during different phases, what sort of development should be done. And this is the current master plan of Lahore. It now look at how it has now grown in the area. The municipal limits, the city limits have grown. So this is the current master plan in which this is the basically you're emphasizing this is the future development. This is the like different areas already developed, and these are the future expansion areas in which different site of development will be done. So this is basically Lahore Master Plan of 2020-21, which is being now revised. We are near the limit. So this is master plan. अगर आप note करें, then I'll show you this. This is outline development plan, which shows the land use plan of 1989 divided by the Housing and Physical Planning Department of 1989. It was developed, and it was also visioned कि 89 से 2014 तक किस तरह की development होगी. For example, this area is your proposed in development. This will be your residential, commercial, industrial, and education public building. So this was also like it is called outline development plan, but it is following the same philosophy of master planning, that you are just zoning it and you are saying this type of development will be done here. So outline development plan and structure plan and your master plans are more or less same thing. Yes, Shoaib. सर वन डिफरेंस वी कैन से दैट कि मास्टर प्लान बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है और मतलब उसके साथ पॉलिसीज और रूल एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, लेकिन जबकि ये जो आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान है ये इतना इतना डिटेल नहीं होता और मेरे ख्याल में कोई लॉ बैकिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं है मेरे. सो मजीद प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दें नहीं, कि क्या आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान का भी होता है. आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान का भी पूरी बुकलेट पड़ी हुई है 90 पेजेस की, विच इज बेसिकली सेइंग जस्टिंग टाउन फ्यूचर प्लानिंग. उसमें सारी डिटेल्स हुई हुई हैं आपका कैसे डेवलपमेंट होगा. लेट्स से स्पेशल प्लानिंग, ठीक है, 89 की किस तरह फ्यूचर में किस किस तरह सिनेरियोस जा सकते हैं. ओके, सो दिस इज आल्सो काइंड ऑफ डेवलपमेंट प्लान. सो अब उस जी मेजर डिफरेंस वो आप जो कह रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन और जो स्मॉलर सेटलमेंट या टाउन के लिए है तो हम ओडीपी सिर्फ और बेसिकली मैं कह रहा हूँ फिलॉसफी एक है, बैक भी एक है, लेकिन हम सिर्फ नाम डिफरेंट यूज कर रहे हैं. जिसने आपको मैंने बताया था कैपिटल सिटी, सिटी से लगता है जैसे पता नहीं बहुत बड़ा शहर होगा नया, लेकिन अंदर क्या, अंदर वो स्कीम ही है. यस गॉट इट. तो सिर्फ हम नाम में फर्क डाल देते हैं, लेकिन टेक्निकली वो चीजें डिफरेंट होती हैं, लेकिन हम लोग उसको एक ही चीज के अंदर ले आते हैं. वो है मास्टर प्लानिंग फिलोसफी. ओके, सो दिस इज डिफरेंट लाइक मास्टर प्लान. उसकी भी अंदर सारी डिटेल्स मौजूद हैं. लाइक दिस विल बी सोशल सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड. लाइक अभी बता रहे हैं एजुकेशन इतने हैं तो कितनी प्राइमरी स्कूल होने चाहिए. मास्टर प्लान में भी ये होता है, आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान में भी ये था, लेकिन मेन फर्क वाज द मेन डिफरेंस वाज ओनली द साइज ऑफ द सिटी या लोकेशन ऑफ द सिटी. लाइक यही अगर आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान मैं सिंध में बना रहा होता तो मैंने उसको मास्टर प्लान कह देना था. तो सिर्फ टर्मिनोलॉजीज का फर्क है, बैक एंड पे वही चीज है. सो आपने होपफुली आपने ये तो खैर टेक्सला का था. देन इफ यू हैव so technically
आपके सब मेजर जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, सबका आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान बने हुए हैं. If you browse through every area, like just like I'll सियालकोट में खोलता हूँ, तो सियालकोट में जितने एरियाज हैं उसके आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान्स बने हुए हैं. ओके, सो एवरी एरिया मोर और लेस पंजाब के एटलीस्ट डेवलपमेंट प्लान्स बने हुए हैं. सिर्फ आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान्स कहते हैं उसको. Okay, now let's go back to the approaches. Okay. ओके, सो फॉर द टाइम बीइंग हम जब सब पाकिस्तान में एटलीस्ट जो चीज हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज द मास्टर प्लानिंग टेक्निक, बीइंग originated from British, and we are still adopting it. Master planning, town planning. So this is basically also called visual planning, in which we envision कि हमने अपना शहर में डेवलपमेंट कहाँ कहाँ करनी है, and based on that we are allocating different land uses and zoning. That is called master planning. Okay, it has specific documentation with policies and regulations के साथ डॉक्यूमेंट होगा काफी, जो आपको गाइड करेगा, जो उस मैप को बेसिकली एक्सप्लेन करेगा. होता इन दी एंड हमारे पास एक मैप ही है जिसको हमने फॉलो करना होता है, जिसको देख के हम कह सकते हैं इस एरिया में स्कीम पास हो सकती है कि नहीं, इस एरिया में इंडस्ट्री लग सकती है कि नहीं लग सकती. सो दैट इज बेसिकली मास्टर प्लानिंग. Any question about master planning? Again, I gave you an example of through some pictures. मास्टर प्लानिंग के बारे में कोई सवाल हो? अभी हम सिर्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की बात कर रहे हैं, हमें भी इंस्टीट्यूशंस पे नहीं गए कि कौन इंप्लीमेंट करेगा, कैसे इंप्लीमेंट करेगा. हम सिर्फ एक बता रहे हैं, एक टूल को एग्जामिन कर रहे हैं. व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स और मैकेनिज्म्स व्हिच वी कैन अडॉप्ट टू मैनेज अ सिटी. अच्छा, मास्टर प्लानिंग के अलावा कोई बताएं मुझे अप्रोच, प्लानर्स. एनीवन? Okay. Then is your strategic planning or synoptic planning, in which we want an aim. हमने इसको ये चीज करनी है. Let's say we're talking about फैसलाबाद. हम चाहते हैं कि फैसलाबाद की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट हो. तो हमारा सारा का सारा मास्टर प्लान वुड बी फोकसिंग ऑन और गिविंग incentives to the industrialist to set up different industries, to how then depending upon those industries we can then have to formulate workers housing, or the industrial workers who will be working, we need to provide housing for them. So all of our development plan will be focused toward certain goals. इस शहर को क्या देखना चाहते हैं? Let's say talking about Islamabad, we can say Islamabad is a educational hub of Pakistan. So क्या all of master planning should be, or it would be focused towards uh, development of new universities or new campuses or research center or development or anything which can support the university setups. So that would be like educational city. This is our aim. For example, then maybe we want this to be a tourist city. Then all of the development would be geared towards the touristic development. Yes, Arbaz? सर ये जो इकोनॉमिक सिटीज बनती हैं ये किस के अंडर, मतलब ये इसका भी मास्टर प्लानिंग के हिसाब से, जिस तरह सीपेक के कॉरिडोर्स के साथ छोड़ दें, वो बन रही. मास्टर प्लानिंग नहीं है. वो मास्टर प्लानिंग वो हमारी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग. उसमें आ जाती हैं आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स. उसमें जोन्स होती हैं, वो मास्टर प्लानिंग नहीं है. वो आप छोड़ दें. मास्टर प्लानिंग इज समथिंग डिफरेंट. हम उसको मास्टर प्लानिंग कहते हैं क्योंकि हमें हमारे जहन में चढ़ा हुआ है कि मास्टर प्लान इज द कॉन्सेप्ट, मास्टर प्लान इज द ओनली थिंग. मास्टर प्लानिंग इज जस्ट अ सिंपल डॉक्यूमेंट विद लैंड यूज एंड लैंड यूज एलोकेशन या जोनिंग. हमारी जो आप बात कर रहे हैं वो है, वो भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के टाइप है, इन विच हमारी जो फोकस्ड होगा वो है ट्रेड के ऊपर, ट्रेड या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे या उस ट्रैफिक, वो हमारी है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये वाली प्लानिंग. यस सालिया? सर नजर इज आस्किंग कि सब्जेक्ट प्लान क्या होता है फिर? सब्जेक्ट प्लान? I'm sorry, subject plan? Subject I Yes, sir, strategic. subject.
ओके, आई हैव नो आइडिया सब्जेक्ट प्लान क्या होगा, आई डोंट नो। स्ट्रेटेजिक प्लान होता है, और अगर मैं इस कुछ साइड्स एक्सप्लेन करूंगा, मे बी उनको अगर नजर, इफ यू अंडरस्टैंड देन मे बी उसमें आपको इनकॉर्पोरेट हो जाए। सब्जेक्ट प्लान इज मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्टर प्लान, मे बी सेक्टोरल डेवलपमेंट, सेक्टर वाइज डेवलपमेंट, लाइक यस ताहा। सर ये एक्चुअली जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये सब्जेक्ट एरिया प्लान इसको कहते हैं। मतलब एक एरिया को स्पेसिफाई करके उसमें मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को लेके आप चलते हैं। सब्जेक्ट एरिया प्लान आई थिंक इसे कहते हैं, if I'm not wrong. Maybe I've not heard about this word before, so maybe I'll go through it. Okay, so strategic planning with certain aims and goals. Yes, Shoaib? सर मेरे ख्याल में ऐसा है कि अगर कोई इशू है, लेट्स सपोज कहीं पे सिटी में कहीं पे इशू रेज होता है, या कहीं पे हम छोटा सा प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो वहाँ के लिए एक छोटा सा स्पेसिफिक एरिया के लिए हम प्लानिंग करते हैं या कोई मैप लेते हैं, तो उसको सब्जेक्ट एरिया प्लान मेरे ख्याल में कहते हैं। Okay, I'll go through it. I'll try to find it if I know. So maybe near to action area planning, maybe it's very much similar. Okay, strategic planning समझ आ गई? Anyone about strategic planning? Developing with respect to specific goals. Then is your incremental planning. Yes, Taha. सर स्ट्रेटजी प्लानिंग तो क्लियर है कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, पर मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज हमारा स्ट्रेटजी प्लान है कि हमने एजुकेशन को जैसे अपने का डेवलप करना है, यहाँ भी यूनिवर्सिटी बनानी है, तो एज इट इज स्ट्रेटजी प्लान को ही क्या उसे कहते हैं कि पूरा करने के लिए क्या हमें एक स्पेशल प्लान भी तो चाहिए ही होगा ना। ओके, तो स्पेशल प्लानिंग की किस्म है ना, ये भी अप्रोच है, प्लानिंग सिस्टम्स की अप्रोच है। सो बेसिकली टाइप है, ये भी एक टाइप है। तो अब देखने ऑन ग्राउंड उसकी इंप्लीमेंटेशन करने के लिए मे बी आप जोनिंग भी करें, लेकिन हमारा ओवरऑल जो मास्टर प्लान है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, उसको हमारा अचीव करने का एक टारगेट है स्पेसिफिक। जबकि मास्टर प्लानिंग में हमारा एक विजन होता है, कुछ टारगेट्स नहीं होते। स्ट्रेटेजिक प्लान में टारगेट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्लियर ये अचीव करने हैं। ओके ओके सर, ओके यस। Next is your incremental planning, which is at a small scale, and all the areas, ये हम कहते हैं incremental planning basically local areas में या जो remote areas especially, उनको इतनी authorities दे देते हैं, local authorities को, they can develop their own plan and it should be dynamic enough to change या regulate या update quickly. And उसका फायदा ये होता है कि अगर हमारा मास्टर प्लान फेल, ये इंक्रीमेंटल प्लान में हमारा जो प्लान फेल होता है डेवलपमेंट प्लान, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत थोड़े होते हैं, उसके जो इम्पैक्ट्स होंगे उस एरिया में रहेंगे। जबकि अगर मास्टर प्लान ओवरऑल फेल होता है हमारे शहर का, तो पूरे शहर को नुकसान होगा। सो देयर इज अ फिलॉसफी कि पूरा शहर का प्लान पकड़ें और उसके छोटे छोटे टुकड़े पार्ट्स कर दें, उस पार्ट्स के अंदर अपनी अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशंस नीड बेस्ड डेवलपमेंट करें। दैट इज इंक्रीमेंटल प्लानिंग, कि वक्त के साथ साथ चेंजिंग डिमांड के साथ अपना मास्टर प्लान एडजस्ट करते रहें और डेवलपमेंट को स्ट्रीमलाइन करते रहें। दैट इज अनदर अप्रोच, इंक्रीमेंटल प्लानिंग। देन इज सेक्टोरल प्लानिंग, कि हम सेक्टर डिफाइन कर दें कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अलग कर दें उसका प्लान, एजुकेशन डेवलपमेंट का प्लान अलग रखें, उस सबका प्लान अलग रखें। जिस तरह पाकिस्तान के आपने वो देखे होंगे 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान या एनुअल डेवलपमेंट प्लान, उसमें सेक्टोरल डेवलपमेंट अप्रोच है हमारी, उसमें हम सेक्टर वाइज डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें हम प्लानिंग की बात ही नहीं करते, अर्बन प्लानिंग की एज अ होल इंटीग्रेटेड बात ही नहीं करते। हम कहते हैं जी हम इंडस्ट्रियल का सेक्टर है, एग्रीकल्चर का सेक्टर है आपका, सो डिफरेंट सेक्टोरल डेवलपमेंट, ये भी अप्रोच है जो हमारी एक ये सरबाज। सर ये इंक्रीमेंटल प्लानिंग जो है सर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो करती है, लाइक वाइज सर अगर मेरे पास एक एग्जांपल है, आप उसको मुझे करेक्ट कीजिएगा। जो इस्लामाबाद में E11 सेक्टर है, उनके लिए जो उन्होंने एक सेपरेट सी पॉलिसी बनाई हुई है फॉर रेगुलराइजेशन या ओरिएंटल, जो भी आप कह रहे हैं, तो उसको हम ओरिएंटल प्लानिंग कह सकते हैं, इंक्रीमेंटल प्लानिंग कह सकते हैं। E11 में जो ये आर्मी के पास है एरिया? नहीं सर, E11 जो सेक्टर है वो CDA का ही सेक्टर है, लेकिन उसमें डिफरेंट प्राइवेट सोसाइटीज ने ओन किया था वो जगह, बेसिकली वो CDA के अंडर ही था। लेकिन फिर गोलरा शरीफ और इसकी वजह से जो है ना, वो वहाँ पर पार्टीज जो है ना, प्राइवेट पार्टीज ने उसको डेवलप किया।
तो अब वो जो 2007 में इसकी कोई रूल्स आए थे रेगुलराइजेशन के लिए, तो आया हम उसको कह सकते हैं कि इंक्रीमेंटल प्लानिंग उसको एक स्मॉल स्केल पे रख के उन्होंने एक प्लानिंग या पॉलिसी बना दी थी? ओके, द पॉइंट इज के अब टू बी फ्रैंक मुझे अभी इतना आइडिया तो नहीं है उस सिचुएशन का, तो आई कैन नॉट जस्टिफाइड कि ये इंक्रीमेंटल है या नहीं है, लेकिन इंक्रीमेंटल प्लानिंग होता है विच इज फ्री फ्रॉम फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या उसके ऊपर हायर अथॉरिटी कोई नहीं होती। लोकल इंस्टीट्यूशन को इतनी पावर दे दी जाती है कि अपने एंड वो करें, काम करें, उसको बाहर की फोर्स इन्फ्लुएंस नहीं करती। दैट इज इंक्रीमेंटल प्लानिंग, काइंड ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू प्लानिंग। लोकल मतलब कोई इंस्टीट्यूशन को पावर, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसमें कोई इनपुट नहीं करती, सारा लेकिन कम्युनिटी बेस्ड नहीं होता है? जरूरी नहीं होता इंक्रीमेंटल प्लानिंग से प्राइवेट करे। इंक्रीमेंटल की लोकल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, जो अपने नीड बेस की छोटी छोटी प्लानिंग करते हैं वक्त के साथ साथ, उनको अप्रूवल ना लेने पड़े ऊपर से, उनको इतनी अथॉरिटी दे दी जाए। यस ताहा। सर ये जो अरबाज बात कर रहे हैं ये इस तरह है कि जो 2 जोन हैं, जोन 1 और जोन 2 इस्लामाबाद के, जोन 1 के जो सेक्टर्स हैं उसमें सीडीए एज अ खुद ही उसको डेवलप करता है, जबकि जोन 2 जो है उसमें उसने इजाजत दी हुई है कि प्राइवेट जो लोग हैं वो उसको एक्वायर करके प्लान कर सकते हैं एज पर इस्लामाबाद मास्टर प्लान। तो आई थिंक E11 भी उसी कैटेगरी में जा रहा है, इस वजह से उसको प्राइवेटली एक्वायर करके उसको कर रहे हैं। हाँ तो देखें ना, प्राइवेट एक्विजिशन के लिए भी आप सीडीए इज समथिंग डिफरेंट। अगर आप पाकिस्तान में बात, लाहौर में बात करें या डिफरेंट एरियाज पाकिस्तान की बात करें, तो आपकी जो प्राइवेट डीएचए वगैरह एक्वायर करता है उसको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। जबकि सीडीए में अगर आप ले रहे हैं, जोन कोई ले रहे हैं, तो आपको सीडीए से अप्रूवल लेनी पड़ती है उस स्कीम की डेवलपमेंट की। तो अगेन वो सीडीए अपने मास्टर प्लान के साथ मैच करवा के जोन 2 को डिक्लेयर करके डेवलपमेंट करवा रहा है उधर। एग्जैक्टली सर, ये मतलब इंक्रीमेंटल प्लानिंग में आई थिंक ये नहीं जाएगा। नहीं जाएगा अगर ये सिनेरियो है। यस नहीं समझ। सर, यहाँ पर तो एक और सिनारियो भी है कि जी जी। मतलब वो प्राइवेट मतलब एक किस्म की पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं जो रेगुलराइजेशन की तरफ से जा रही है। वाकई में वो जो है ना अथॉरिटी जो है ना वो उसको रेगुलराइज कर रही है, लेकिन एक कम्युनिटी बेस को अलाउ कर दिया, उसको बहुत सी जो है ना अपॉर्चुनिटीज दे के वो परसेंटेज कम करा देख, के अच्छा जी जो है हाँ, ना अगर उसको आप रेगुलराइज किया। ठीक है ठीक है, अगर आप कम्युनिटी की बात करें वो प्लानिंग डिफरेंट आ जाती है, वो प्लानिंग डिफरेंट है। वो उसमें भी जाता हूँ मैं। अगर आप कह रहे हैं कम्युनिटी को इतनी पावर दे दी गई है कि अपनी डेवलपमेंट खुद कर ले वो अपनी, तो वो एक अलग एक है। सो यस समझ, यू वांट टू ऐड समथिंग? सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो 5 इयर्स प्लान बने थे, फर्स्ट 5 ईयर, सेकंड 5 ईयर प्लान्स, तो ये भी मास्टर प्लान का पार्ट थे या फिर ये कोई और प्लान्स थे? ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स कहते हैं इसको हम। ये स्ट्रेटेजिक प्लान से, उसमें सेक्टरल टाइप डेवलपमेंट हुई हुई थी। ये हमारी प्लानिंग डिफरेंट है। मास्टर प्लानिंग समथिंग डिफरेंट। मास्टर प्लानिंग को हमने पता नहीं क्यों फिजिकल प्लानिंग से तो मर्ज कर चुके हैं कि ये फिजिकल प्लानिंग ही होती है। यस रिदा। एक्सक्यूज मी सर, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ एक्शन प्लान और इंक्रीमेंटल प्लानिंग में। सर एक्शन प्लान में फिर मेरे ख्याल में कोई भी मतलब एक्शन प्लान तो ये होता है ना कि कोई पर्टिकुलर इशू है तो उसको सॉल्व करने के लिए काम होता है उस पर। तो सर वो फिर मेरे ख्याल में या तो उसके लिए भी मतलब अथॉरिटी से परमिशंस वगैरह लेके वो करना होता होगा, फिर ये उसमें होता होगा डिफरेंस। सर इसको थोड़ा क्लियर कर दें। ओके ओके, इंक्रीमेंटल प्लानिंग इज एन अप्रोच, एक अप्रोच है पूरी, एक फिलॉसफी कह लें या कॉन्सेप्ट कह लें, इन विच ऑल ऑफ द डेवलपमेंट इज बीइंग डन बाय द लोकल इंस्टीट्यूशंस। नीड बेस्ड असेसमेंट हो रही है वो, या नीड बेस्ड प्लानिंग हो रही है। यानी कि हाउसिंग हमारा कर रहे थे हम, हाउसिंग हमारा फोकस था, हाउसिंग पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, डिजास्टर आ गया, डिजास्टर गया, हमने फॉरेन पॉलिसी बदली, नाउ हमें रिहेबिलिटेशन पे काम करना है, रिलीफ पे काम करना है। मास्टर प्लान में इतनी गुंजाइश थी कि नाउ इट हैड शिफ्टेड इट्स फोकस टुवर्ड्स दिस थिंग। ये सॉरी, मास्टर प्लान के वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, डेवलपमेंट प्लान में इतनी गुंजाइश थी कि देन वी सेड बेसिकली इट वाज एन आंसर टू द रिजिडनेस ऑफ मास्टर प्लान। मास्टर प्लान 20 इयर्स के लिए डिक्लेयर होता है, 20 इयर्स के बाद अमेंड होता है। इंक्रीमेंटल प्लान कहते हैं कि एट द स्पॉट अकॉर्डिंग टू नीड आप अपना मैप चेंज कर लें, अपना डेवलपमेंट प्लान चेंज कर लें, अपना स्ट्रेटेजिक प्लान चेंज कर लें, अपना विजन चेंज कर लें, अपने गोल ऑब्जेक्टिव चेंज कर लें, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। दैट इज बेसिकली इंक्रीमेंटल प्लानिंग। ओके, जो आपको कंफ्यूजन हो रही है प्लानर्स को, बेसिकली वो मसला ये है कि वी आर मिक्सिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। हमने ये सारा मास्टर प्लान के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी मिक्स कर लिया है, हमने उस चीज में मिक्स कर लिया, उस चीज में, तो हम ऑन ग्राउंड सब चीजों के सब फिलॉसफीज को, जिस तरह मैं बात करता हूँ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग,
सेक्टोरल प्लानिंग आपकी फेडरल गवर्नमेंट एनुअल डेवलपमेंट प्लान की सूरत में कर रही है। लोकल लेवल पे शहर मास्टर प्लानिंग की अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एट द टाइम प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट प्लानिंग अप्रोचेस को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास इस टाइम पे मिक्स खिचड़ी बनी हुई है। इट इज बेसिकली अ मेस ऑन ग्राउंड। कौन क्या विजन लेके चल रहा है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। सो रिदा, आर यू क्लियर? मैं ओवर यस सर। एक्सप्लेन और सर नहीं सर, समझ आ गई है। और सर ना हर चीज को ना सब लोग मास्टर प्लानिंग का नाम दे, उसमें जो दिल करे उसको कर देते हैं, मेरे ख्याल में ऐसे ही है। इस तरह ही बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान में टर्मिनोलॉजीज का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया जाता है। अब जिस तरह लेट से लाहौर में सबसे बड़ा टाउन कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन? जोहर टाउन कैसे? वाघा टाउन। अजीज वाघा भट्टी टाउन टाउन। अजीज भट्टी टाउन। चले लेट से अजीज भट्टी टाउन या वाघा टाउन। अब टाउन क्या होता है मुझे बताएं। साहब आप बताएं टाउन क्या होता है? सर पर एज पर डेफिनेशन जो है डेफिनेशन से जिसको बताएं। हाँ डेफिनेशन। हाँ जी, एज पर डेफिनेशन है कि समझने के एक हाइब्रिड बिटवीन रूरल और अर्बन एरिया। हाँ, लेकिन हमने उसको टाउन का नाम दिया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पे। जी तो कॉन्सेप्चुअल फर्क नहीं आ गया? अब कोई बंदा जी बिल्कुल। हमसे, स्पेशली मेरे एडवाइजर या सुपरवाइजर, जब हमको मैं एक्सप्लेन करता था जी मेरा ये टाउन लिया मैंने, सर कहते टाउन क्यों लिया तुमने, तो सिटी लेनी थी, अर्बन एरिया लेना था, टाउन क्यों लिया? बेसिकली उनको फिर समझाना पड़ता था कि टाउन का हम वर्ड मिस यूज कर रहे हैं। सो आई मीन इसकी फिलॉसफी है कि क्वेरी अर्बन रूरल की मिक्सचर हो या जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम हो, दैट इज अ टाउन। लेकिन ऑन ग्राउंड हमारा जो टाउन है उसमें कितनी पॉपुलेशन होगी? मिलियन में पॉपुलेशन होगी। सो आई मीन देयर इज, हम मिस यूज कर रहे हैं टर्मिनोलॉजीज को। सो हमारे इवन आप एक्सप्लेन करें किसी फॉरेनर को या इवन ब्रिटिश को, जो एक्सप्लेन करे जी ये है तो वो है, उसको जब टाउन में बात करेंगे ही विल बी और शी विल बी कंफ्यूज्ड। तो हमने इतना मिक्सचर बना लिया है कि वी आर नॉट क्लियर अबाउट दैट। आई मीन आपका एक बिल्डिंग होती है, एक बिल्डिंग, उसमें एक कंप्यूटर साइंस का एक डिपार्टमेंट डिग्री स्टार्ट करता है, उसका नाम रखता है लेट्स से कोई यूनिवर्सिटी का नाम रख देता है, ताहा यूनिवर्सिटी का नाम रख देता है, ताहा यूनिवर्सिटी। उसमें एक डिपार्टमेंट है, तो वो यूनिवर्सिटी तो ना हुई ना, लेकिन लोगों ने नाम रखा जी ताहा यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी। तो वो हम मिस यूज करते हैं नाम टर्मिनोलॉजीज को। ये हमारा चीज प्लानिंग में भी घुसी हुई है। सर इसी तरह स्कूल्स और कॉलेजेस के नेम्स भी विद यूनिवर्सिटीज और इस तरह से रख दिए जाते हैं। तो बाहर का कोई बंदा अगर किसी को जाए, वो कहे पता कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं होता। यस हारून एक सेकंड, हारून यस। मतलब ये हमने जब मतलब पहले भी पढ़ा है कि मतलब ये तो सर इंटरनेशनली डिवीजन है ना, मतलब हर कोई अपनी मतलब डायनामिक्स के हिसाब से, मतलब कोई पॉपुलेशन के हिसाब से डिक्लेयर करता है कि भाई हमने टाउन किसको कहना है, हेलमेट किसको कहना है, सही है। तो सर इसमें तो फिर वो मतलब अपने डायनामिक्स देख के करेंगे ये तो सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है सर। अच्छा ठीक है, मैं अगर आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि फिर बाकी एरियाज को टाउन क्यों नहीं कहते, फिर तहसीलें क्यों कहते हैं बाकी एरियाज को, उनको टाउन क्यों नहीं कहते, तहसील क्यों कहते हैं फिर? सर हमारा एक्चुअली मैं ये हारून गवर्नमेंट आती है, मतलब कभी हम मतलब सर उस सिस्टम पे जाते हैं, फिर कभी हम कॉर्पोरेशन और ये मेयर वाले सिस्टम पे आते हैं। इसमें तो डिवीजन है ना सर, ये तो बस मतलब सिस्टम है। लोकल गवर्नमेंट अब सर कराची वाले फ्लैश फ्लडिंग थी तो उसमें मतलब कोई अथॉरिटी नहीं ले रहा था कि भाई हाँ ये हमारी वजह से हुआ है। कोई कहते थे मतलब मेयर का काम है, कोई कहते थे म्यूनसिपल अथॉरिटी है, कोई कहते फेडरल है। सर ये वाला इसका इशू है। फिर ये हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली मेरा पॉइंट है कि हमारी शहर क्यों नहीं मैनेज हो रहे, ये शहर क्यों नहीं प्रॉपर्ली ग्रो कर रहे, इसमें क्यों इतनी ट्रैफिक क्यों जैम होती है, क्यों ये मसले आते हैं, प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ। यस ताहा। सर एक्चुअली मैं वही तहसील और टाउन वाली बात करना चाह रहा था जो आपने भी अभी थोड़ी देर पहले की। तो अब लेट्स सपोज अब खुशाब डिस्ट्रिक्ट है, इसकी 4 तहसीलें हैं, तो उसको कहेंगे तहसील म्युनिसिपल अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि वही जब लाहौर में आती है, सिटी डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो उसको फिर टाउन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो सिटी डिस्ट्रिक्ट में उसको टाउन कहते हैं और दूसरे में उसको तहसील कहते हैं। ठीक है। Anyone who wants to add something before we continue our research? Harun, you want to add something?
सर अब यही है ना, अब आप कराची का टाउन देखें और मतलब कराची के जिस तरह 14 टाउन है तो लाइक दे आर लाइक डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, सर वो तो फिर पॉपुलेशन डायनामिक्स है ना सर, उनका बनता भी है। ओके ठीक है ठीक है, आई एग्री, लेकिन हम मेरा जो पॉइंट था बेसिकली, मैं वो ये रेस करना चाह रहा था कि हम टर्मिनोलॉजीज को मिसयूज करते हैं, कम से कम पाकिस्तान के अंदर तो कंसिस्टेंट होनी चाहिए ना। मतलब रूरल और अर्बन की भी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, मतलब कौन से एरिया को हम रूरल कहेंगे, और ये भी मतलब एक वो इसमें मिसिंग है हमारे लॉज में। डेफिनेटली डेफिनेटली देयर इज नो डिक्लेयर्ड या एक्सप्लिसिट डेफिनेशन कहीं नहीं है। ओके अब बात कर रहे थे, जो मेरे ख्याल में उस अरबाज ने भी पॉइंट आउट किया होगा, कम्युनिटी बेस्ड प्लानिंग विच इज आल्सो कॉल्ड पार्टिसिपेटरी और एडवोकेसी प्लानिंग। अब ऑन ग्राउंड क्या है कि आपकी जो एडवोकेसी प्लानिंग है या पार्टिसिपेटरी प्लानिंग को भी का कुछ कंपोनेंट हम कहते हैं कि मास्टर प्लान में भी इंक्लूड करना चाहिए। सो हम जो बेसिकली मास्टर प्लानिंग कर रहे हैं वो इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट स्लाइसेस ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस, उसको मिक्स करके हम मास्टर प्लान बना रहे हैं। सो आई मीन देयर आल्सो पोजेस अ प्रॉब्लम के पार्टिसिपेटरी को हम बुला लेते हैं उनको, लेकिन वो पार्टिसिपेटरी का मतलब है उनको फुली इन्वॉल्व करके डेवलप करें। हम बेसिकली बुलाते हैं उनको पब्लिक हियरिंग के लिए कि कोई अगर कमेंट्स हो, कोई चीज ऐड करनी हो, एंड हमारे फिर पाकिस्तानी वैसे ही जाना पसंद नहीं करते इस तरह की जगहों पे। सो पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट प्लानिंग इज आल्सो एन अप्रोच। देन इज योर सिनेरियो प्लानिंग, दैट इज very much in use in Australia and European countries as well as American cities. अमेरिकन सिटीज में बात की होती है, उन्होंने अपनी पूरी सिटीज को अथॉरिटीज दे दी है इंक्रीमेंटल प्लानिंग की तरह, और उन्होंने अपनी मर्जी से किसी ने सिनेरियो प्लानिंग अडॉप्ट किया है, किसी ने मास्टर प्लानिंग अडॉप्ट की है, किसी ने पार्टिसिपेटरी प्लानिंग की है। सो इट इज लाइक काइंड ऑफ लेड, इट इज जॉब ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब सिनेरियो प्लानिंग इज अ टेक्निक, इट्स एन अपकमिंग टेक्निक in which you are already prepare for different scenarios के यहाँ डेवलपमेंट जा सकती है। अगर तो डेवलपमेंट इस तरीके की हो रही है तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन या इस तरह की डेवलपमेंट करेंगे। अगर हमारा डेवलपमेंट इस तरीके की चल पड़ी है, उसको हम रोक नहीं सकते, देन यू अडॉप्ट एंड चेंज योर डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द करंट डेवलपमेंट ट्रेंड्स, दैट इज सिनेरियो प्लानिंग। अगर इसकी डिटेल्स में जाएंगे, इट इज अ होल डिफरेंट फिनोमेना। सिनेरियो प्लानिंग इट्स एन अपकमिंग टेक्निक। Then a systems view approach. That is another type of planning approach in which you incorporate all the different systems. इसमें predominantly हमारा smart city के जो concepts हैं वो इसमें systems view approach में चलते हैं, in which everything is connected to everything. Okay, so that is smart city or systems view planning. Now these approaches are, I will not say these are the only approaches. There are many other approaches, but technically अगर मैं देखूं तो एडवोकेसी प्लानिंग, ट्रांजैक्टिव प्लानिंग, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग की जो मैंने बात की है, इन तीनों में भी फर्क है, लेकिन आई ग्रुप देम टुगेदर टू जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि ये एक पूरा ग्रुप है, बट इन फैक्ट इनके आपस में भी डिस्टिंक्शन है। सो सिमिलरली प्लानिंग अप्रोचेस हैं मोर और लेस जिनकी फिलॉसफीज या कॉन्सेप्ट्स इनके साथ ओवरलैप होते होंगे, but these are the approaches. Nowadays I would say systems view approach and scenario planning approach are the most commonly adopted by the developed countries. Developing countries abhi bhi master planning or strategic planning pe chal rahi hai. So these are some of the philosophies or concepts of how to manage a city. Any question about these approaches? Anything to add? What is in your view, which system is the best system, which should be adopted? And especially planners, other than master planning, how many types of planning have you heard about? Any other types of these planning have you heard or gone through? Yes, Ahmed. Sir, in case of Pakistan, I think right now strategic planning is a good option, sir, because we need to grow at a rapid pace and also increase our economic growth, sir. Okay, good point. Good point. Yes, Hamza. Yes, sir. I think scenario planning is the best because
सीम्स लाइक इसका कोई फेल हो ही नहीं सकता, कि जो भी कंडीशन आएगी वहीं से ही हम आगे डायनामिकली उसको आगे लेकर जा सकें और उसी डायरेक्शन में ही डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इट सीम्स लाइक इसका तो कोई फेलियर कंडीशन है ही नहीं। तो सिनेरियो प्लानिंग तो सिनेरियो प्लानिंग की मे बी ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हम इंक्रीमेंटल प्लानिंग अप्रोच यूज करें, हो सकता है। इवन मास्टर प्लानिंग अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। मास्टर प्लान में भी आप बजाय कि एक मास्टर प्लान बनाएं, आप 7-8 डिफरेंट मास्टर प्लान बना लें। दैट कैन आल्सो वर्क। सो बेसिकली यू हैव टू प्ले विद देम, व्हिच इज द बेस्ट। यस निदा? निदा? ओके, ये सारी अप्रोचेस हमने स्टडी कर ली, लेकिन एक मेरा पॉइंट था कि अगर हम अर्बन रिवाइटलाइजेशन की स्टडी करें तो वो इस प्लानिंग अप्रोचेस में आता है कि नहीं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, वो जो आप करना चाह रही हैं प्रोजेक्ट, ये फिर एक्शन एरिया प्लान में चले जाता है कि छोटे लेवल पे एग्जीक्यूट करता है। या जिस तरह इसके लिए हम वॉल्ड सिटी का जो रिवाइटलाइजेशन का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में हुआ, उसके लिए लाहौर में हुआ, वॉल्ड सिटी की अथॉरिटी बनी, तो वो एक छोटे लेवल पे था, विच डज नॉट हैव मच इम्पैक्ट ऑन योर मास्टर प्लान एट द लार्जर स्केल। सो रिवाइटलाइजेशन आप पूरे शहर की तो कर नहीं सकते, तो आपने सिर्फ इस्टेब्लिश बिल्ट अप ओल्ड एरियाज पे करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए आई डोंट, मे बी उसके लिए फिर कोई और अप्रोचेस हो। आई हैव नॉट गॉन टू अर्बन रिन्यूअल अप्रोचेस, वो एक डिफरेंट फिनोमिना है, उसके लिए अर्बन रिन्यूअल की अप्रोचेस देखनी पड़ेंगी। ये तो मैं एक सिटी लेवल पे बात कर रहा हूँ, ओवरऑल लार्जर स्केल पे मेट्रोपॉलिटन मैनेजमेंट या अर्बन मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, अर्बनाइजेशन ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। इसमें मैंने रीडेवलपमेंट की बात ही नहीं की। मोस्ट प्रॉब्ली उसके लिए अपनी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टेक्निक्स होंगी यकीनन। ये शोएब? यस सर, जैसे आपने जो पहले ही एक्सप्लेन किया था हमारे सोसाइटीज़ के बारे में, जैसे कैपिटलिस्टिक और जैसे हमारी सोशलिस्टिक सोसाइटीज़ नहीं हो सकती, इसी तरह इन अप्रोचेस में से मेरे ख्याल में प्योरली कोई सूटेबल नहीं हो सकती। तो आई थिंक जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, इसके मुताबिक हमें मास्टर प्लानिंग इज़ अ गुड ऑप्शन, लेकिन हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए विद इन मास्टर प्लानिंग, और ऑल्सो वी शुड कीप इन माइंड द सिनेरियो प्लानिंग कि अगर लेट्स सपोज ये नहीं तो ये इस तरह कैसे चलेगा। तो मेरे ख्याल में एक ब्लेंड होना चाहिए, या एक हम कहते हैं कंप्रीहेंसिव किस्म की एक टेक्निक यूज कर सकते हैं सर। यस, वेरी गुड पॉइंट। तो इसका बैलेंस करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इवन आप प्रेडिक्शन मॉडलिंग करते हैं, सिनेरियो प्लानिंग में प्रेडिक्शन मॉडलिंग है, तो हम प्रेडिक्शन मॉडलिंग से भी हमारे डिफरेंट हम मॉडल्स तैयार कर सकते हैं कि इस तरह फ्यूचर जा सकती है डेवलपमेंट। अगर लेट्स से आई कैन लाइक आई डिड अ पेपर बैट 5 years बैक, उसमें यही प्रेडिक्शन मॉडलिंग की थी कि अगर लाहौर में मास्टर प्लान को फॉलो किया जाए, अगर 5% एक फुल फॉलो करेंगे तो लाहौर में कैसी डेवलपमेंट होगी, 25% फॉलो हो तो कैसी डेवलपमेंट होगी, 50% फॉलो करें तो कैसी होगी, और 100% अगर यानी कि फॉलो करें या ना करें उस तरह के सिनेरियो। तो 4-5 मैंने सिनेरियोज डेवलप किए थे। सो बेसिकली वो क्या था, वो बेसिकली मास्टर प्लानिंग ही थी। मैं नक्शे तैयार किए थे, लेकिन वो मैंने अप्रोच यूज की थी सिनेरियो प्लानिंग की। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर अगेन कॉन्टेक्स्ट एंड योर प्लानर्स, या उनकी मिक्सचर में किस लेवल तक क्या प्रोपोर्शन इसकी रखेंगे, कितनी आप स्ट्रेटेजिक को अहमियत देते हैं, किसको क्या करते हैं। तो मास्टर प्लानिंग को बेसिकली आई एम जस्ट सेइंग दैट just saying master planning is the only way. It's like you have to as a planner you need to see all the alternatives and choose the best one according to the situation. Yes Harun? सर मैंने पूछना था, ये जिस तरह भी इस्लामाबाद और पिंडी के मास्टर प्लान में पहले सर रिंग रोड तो नहीं थी, लेकिन अब वही इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो मतलब वो नीड थी, तो फिर लाइक दिस इज इंक्रीमेंटल मतलब प्लानिंग की अप्रोच होगी। नहीं, I would say that was more like a strategic planning. Yeah, it was more like that thing कि उसको connectivities बढ़ा लें, structure plan की तरफ ले गए थे वो। इंक्रीमेंटल प्लानिंग की कोई सर मिसाल, मतलब कोई एग्जांपल हो क्या ये अप्रोच यूज हुई है, तो ये इंक्रीमेंटल प्लानिंग में इस तरह, तो सर ये तो जनरल टर्म है। ओके, इंक्रीमेंटल प्लानिंग में जिस तरह मैंने आपको बात ही, मैंने आपको एग्जांपल दी अमेरिका की कुछ सिटीज की, वो काउंटीज को, अपनी काउंटीज को इतनी दे देते हैं कि दे कैन अपना सिस्टम बनाएं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं और अपनी नीड्स के मुताबिक डेवलपमेंट करें। हमें क्या होता है कि हमें बस
Let's तो say सर पे भी economic. होते हैं ना, पीपल जी। भी तो होते हैं, मतलब पूरी मतलब वो अथॉरिटी देते हैं ना, जिसमें आप एक कम्युनिटी की बात करें, लाइक उनकी कम्युनिटी बेस्ड होती है एक कम्युनिटी, लेकिन उसमें सर उनके बंदे तो होते हैं ना, मतलब वो फिर इंस्टीट्यूशन टाइप ही होता है ना सर एक वो पूरा। ओके, ये तो मैं बात कर रहा हूँ इंक्रीमेंटल प्लानिंग की। मैं इम्प्लीमेंटेशन इसकी डिफरेंट है, कौन करेगा, कैसे करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, वो बात की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अप्रोच कर रहा हूँ कि एक एरिया की डेवलपमेंट या अर्बन मैनेजमेंट करने के तरीके क्या हैं ऑन ग्राउंड। मैं तो अभी बात ही नहीं कर रहा प्राइवेट कौन है पब्लिक कौन है, उसमें तो मैं जा नहीं रहा फिलहाल। ये है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स वे ओवरऑल जो शहर को आइडेंटिफाई करें। फिर सर मतलब जिस तरह अप्रोच कर रहे हैं, तो मतलब सर अब ये सिस्टम व्यू अप्रोच की जो बात कर रहे हैं, लेकिन लाइक फ्यूचर सिटीज या स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट इसमें है, लाइक जिस तरह हम कह रहे हैं कि लाइक मतलब हम अब ये कार्स को शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए, तो लाइक फिर सर उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी लाइक पेट्रोल पंप ये तो नहीं होंगे ना, मतलब फिर उनके लिए मतलब तो इलेक्ट्रिक देखिए ना, चार्ज। तो वही तो बात है कि अगर आप नहीं कर सकते तो इसका मतलब है सिस्टम्स व्यू अप्रोच ना यूज करें आप। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर ना करें। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है आपकी, डिपेंड करता है। ये सिस्टम्स व्यू अप्रोच इन्होंने सैन फ्रांसिस्को वगैरह जो आईटी बेस्ड सिटीज हैं जहां आईटी का बड़ा है, तो वहां ये वाली अप्रोच चलती है प्लानिंग की। सो इट ऑल डिपेंड्स। यस मुबशर। सर ये जिस तरह फ्यूचर में जो रोड्स हैं, डिफरेंट रोड्स हैं, मेन रोड्स या कलेक्टर्स हैं, उनके स्टेटस चेंज हो जाते हैं कमर्शलाइजेशन में, तो सर ये हम कर सकते हैं इंक्रीमेंटल प्लानिंग हाँ, के ये हो सकती ये है कर सर? सकते हैं, बिल्कुल वेरी गुड एग्जांपल। लैंड यूज प्लानिंग या रिक्लासिफिकेशन को इंक्रीमेंटल प्लानिंग कह सकते हैं कि रोड तो मास्टर प्लान में तो कभी डिक्लेयर नहीं हुआ ये एरिया या रियर रोड, उसकी तो बात ही नहीं होती। लेकिन हाँ, छोटे लेवल पे नीड बेस पे हमने उस रोड को ओपन डिक्लेयर कर दिया कमर्शलाइजेशन के लिए। यस, दैट इज द टाइप ऑफ इंक्रीमेंटल प्लानिंग आई वुड से। ओके, क्लियर एनीवन? ये चीजें अप्रोच क्लियर है? अगर टेक्निकली क्या है, इन एक अप्रोच के ऊपर पूरे लेक्चर्स हो सकते हैं पूरी, लेकिन आई वुड से दीज बिलोंग टू द सस्टेनेबल लैंड यूज डेवलपमेंट के सब्जेक्ट है, उसमें आप फोकस करें इस पे। यस समझ? समझ सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर, ये जो पार्टिसिपेटरी या जो एडुकेसी प्लानिंग है, तो पाकिस्तान के केस में अगर बात करें सर, तो हम जिनके लिए प्लान बना रहे हैं अगर हम उनको कंसल्ट ना करें तो फिर वो प्लान ऑटोमेटिकली वो क्या कह सकते हैं उसको इम्प्लीमेंटेबल हो ही नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट अप्रोच पाकिस्तान के केस में पार्टिसिपेटरी प्लानिंग ही हो सकती है कि जब तक हम लोगों को उसमें इन्वॉल्व ना करें तो फिर ये चीज़। हाँ, ये एग्री करता हूं मैं, लेकिन अगेन टू व्हाट एक्सटेंट देयर इज सम टेक्निकल लिमिट्स भी हमारे पास होती हैं, तो हम 100% फुली पार्टिसिपेटरी कर भी नहीं सकते, और ना 100 लोगों की 100% पार्टिसिपेशन होती है। देयर ऑल बी सर्टेन स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी विच विल बी डेवलप। मसलन कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं एक एरिया में, तो आप किसी को तो नुकसान होगा ना। किसी की एरिया को आप कवर करेंगे, खरीदेंगे या डिमोलिश करेंगे, रीबिल्ड करेंगे, तो आप 100% लोगों को खुश कर ही नहीं सकते। सो पार्टिसिपेटरी टू सम एक्सटेंट ठीक है, लेकिन आपकी इधर लोगों की पार्टिसिपेशन ही नहीं होगी। यस ताहा। सर ये जो पार्टिसिपेटरी एडवोकेसी प्लानिंग है, मतलब मुझे जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो एक मेथड है आगे किसी अप्रोच को अचीव करने के लिए। अब आप कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके आपने जो प्रोडक्ट देना है वो एंड पे कोई मास्टर प्लान ही होगा या कोई स्ट्रेटजिक प्लान ही होगा। तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके हमने कोई चीज ही बनानी है, तो वो इन्हीं में से कोई एक प्लान ही होगा। तो कम्युनिटी को मास्टर प्लान का पता ही नहीं है फिर तो कुछ सर मैं इसलिए कहना ये चाह रहा हूँ कि उनसे हमने राय लेनी है ना, किसी बारे में राय ले। एक मिसकॉन्सेप्शन है पब्लिक पार्टिसिपेशन का या पब्लिक इन्वॉल्वमेंट का। पब्लिक, अब मैं जो बात कर रहा हूँ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है, वो खुद डिजाइन करे, वो खुद बनाए, वो उससे मशवरा नहीं लेना आपने, उसको खुद इन्वॉल्व करना है। सर बिल्कुल ठीक है, खुद बनाए, मैं कहता हूँ सब कुछ खुद करे, जाके सब कुछ खुद करे, पर बनाएगी कोई चीज तो बनाएगी सही ना। वो मास्टर प्लान बनाएगी, स्ट्रेटजिक प्लान बनाएगी। नहीं, यही तो बात है कि हमारी अपनी एक बायसनेस है या लिमिटेशन है कि हम एज अ प्लानर कहते हैं एंड पे बनना तो मास्टर प्लान ही है। तो ये आपने ऑटोमेटिकली आपने पार्टिसिपेटरी को जीरो कर दिया कि एंड पे करना तो हमने ही है ना, बनाना तो हमने ही है। तो वो बेसिकली इन द एंड आप जो फिलॉसफी है या उस कॉन्सेप्ट को निगेट कर रहे हैं। तो मैं ये, आपकी भी ये लिमिटेशन है, मेरी भी ये लिमिटेशन है। ओके, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ताहा, राइट? जी सर। यस सालिया। Sir, these plans overlap आपस में, right? At some point. Yes, definitely. That is why I'm saying कि
ये मिक्स्ड होंगे, किसी ना किसी तरह एक दूसरे पे ओवरलैप जरूर होगा इन कॉन्सेप्ट्स का। ये रिश्ता अब विजन में हम बात कर रहे हैं, तो विजन में भी कोई ना कोई हम स्ट्रेटजी इवॉल्व करके कहेंगे शहर को ये करना चाहते हैं, उसके लिए हम स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे, एक एम्स रेगुलेशन एम्स कोई छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, लूज से गोल बनाएंगे बेसिकली, तो वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में भी कन्वर्ट होते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन मास्टर प्लानिंग। सो ऑल ऑफ दीज आर काइंड ऑफ मिक्स्ड अप, बट लेकिन हमें टू बी क्लियर हमें इन सबको अलग-अलग देखना पड़ेगा, तो हमें क्लैरिटी होगी कि किस चीज पे किसको इन्वॉल्व करना है, किस चीज को कम करना है या ज्यादा करना है। यस रिदा। शिवली सर, आपने जिस तरह से कहा कि एंड पर जो है ना हम लोग सब मास्टर प्लान ही बनाते हैं, तो सर सर आवाज आई? यस सर, कंटिन्यू। तो सर मैंने कहा सर जैसा आपने बोला ना कि हम लोग एंड पे जो है वो मास्टर प्लान ही बनाते हैं, तो सर कैसा ही होता है। और दूसरा है कि सर हमारे बैचलर्स की कोर्स आउटलाइन में ही एक मतलब सब्जेक्ट होता ही मास्टर प्लानिंग के नाम से है। मतलब 2 सेमेस्टर में हम मास्टर प्लानिंग 1, मास्टर प्लानिंग 2, मतलब इस तरह से 2 सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। तो सर वो फिर हमारा माइंड भी उस तरह का ही बना हुआ है कि मास्टर प्लानिंग ही करनी है। एंड दे आर राइट टू डू सर सो। पॉइंट ये है कि क्योंकि हमें लीगली हमारे इंस्टीट्यूशंस या हमारे एक्ट सपोर्ट करते हैं मास्टर प्लान को, इसलिए हम इसको यस सर। इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, तो बेसिकली ये मैं बात कर रहा हूँ कि हम आपके इंस्टीट्यूशंस का सेटअप या लीगल फ्रेमवर्क इस तरीके का सेटअप हुआ है, वो मैं अगले पॉइंट्स में जाऊंगा कि आप मास्टर प्लान को इसलिए अडॉप्ट करते हैं कि बिकॉज राइट नाउ दैट इज द ओनली थिंग विच इज सपोर्टेड बाय द लॉ। यस सर, एग्जैक्टली ऐसे ही है। लेकिन you as a planner, as a researcher, as a scientist, you have to think bigger picture. You don't have to be bound by local conditions. यही तो comparative planning की बात है कि we are going to be comparing all of the world systems and see what is the better system and applicable in context of Pakistan. That is the aim of our subject. Yes sir. Okay, let's continue. I have to be fast now. Basically, different institutions will have different approaches, different hierarchies, setups, scales. They will have different tactics. So basically, we are first empowered by the Town Planning Act of 1947. British ने बनाया था, हम उसको implement करते हैं, and then we construct a new, हमने ordinance बनाया था Municipal Administration Ordinance 1960 का, based on the you can say input from British government जो अपना उसके मुताबिक MAO के मुताबिक हमने न्यू म्यूनिसिपैलिटीज, कंटोनमेंट्स एंड इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की इशू बनाए थे। म्यूनिसिपैलिटीज विल मैनेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरियाज, कंटोनमेंट्स will be given to the armies, and the improvement trust will develop new housing schemes for the citizens. ये 3 इंस्टीट्यूशन सेटअप किए थे 1960 के ऑर्डिनेंस में। In 1965 की प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 3 out of 100 people are the only, यानी कि 3% people are qualified enough to develop a city. 1960s में पाकिस्तान में पहला अर्बन प्लानिंग का डिपार्टमेंट कब सेटअप हुआ एजुकेशन का? Anyone? Yes, Shoaib. 1962 में सर। 7 Okay. और Yeah. Shoaib? ये सर 1967 और 2 शायद, मैं एग्जैक्टली याद नहीं। ओके, 62 में बेसिकली मास्टर की डिग्री स्टार्ट हुई थी एंड 65 में बैचलर्स की डिग्री स्टार्ट होगी, 65-66 में यूटी लाहौर में फर्स्ट डिग्री, बिकॉज पीपल दे वर नॉट इनफ क्वालिफाइड पीपल टू मेक प्लान्स फॉर द सिटी एट द सिटी लेवल। और ओके दिस यस बने हुए थे लाइक सर फैसलाबाद का आप मास्टर प्लान देखें, लाइक वो घंटा घर वाला 8 बाजार वाला, लाइक सर वो बुरे तो नहीं थे, लाइक बने हुए सही थे, लाइक क्वालिफाइड पीपल तो थे ना सर। लाइक आप पुरानी आप देखें मुगल आर्किटेक्चर, लाइक पूरा लोग उसमें पीएचडी करते हैं, लाइक उनकी प्लानिंग और ठीक है, वो तो फिर लोग तो मोहनजोदाड़ो पे भी करते हैं।
वो क्यों तबाह हो गया था मोहनजोदड़ो? कहते हैं ना, मतलब वो ये कह रहे हैं ना, मतलब उन्हें बाद में ज्यादा सर हमने डिस्टर्ब किया ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लाइक पहले सही था या मतलब हमने उसको कंडीशन वर्स की है ना सिटीज की। ओके बेहतर ओके, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। लेकिन जब पॉपुलेशन एक्सपैंड करेगी, पॉपुलेशन ग्रो करेगी, उनको कहाँ अकोमोडेट करेंगे आप लोग? उसके लिए मैनेजमेंट तरीके से ग्रोथ तो होनी है। वो छोटे छोटे एरिया से, वो तो पहले तो जी जी लाइक सर वो प्रेजेंट लोगों ने ना, मतलब अर्बन सर उस टाइम भी तो था ना, मतलब लाइक बिग सिटीज में था, मतलब आप देखें, मतलब लाइक मुगल में लाइक आप जीडीपी का लाइक 23% वर्ल्ड का शायद आप कितने मतलब इधर से होता था। वो तो था सर, मतलब डेवलपमेंट तो थी ना सर, ये तो हम बाद में मतलब हमारी कंडीशन खराब हुई। हाँ, तो आप उस इरा में कितने % लोग अंडर 10 ईयर्स में मर जाते थे, वो बताएं। उस इरा में पॉवर्टी से कितने लोग मर जाते थे? हेल्थ की फैसिलिटीज कैसी थी? ठीक है ना? अब वी एज अ प्लानर वी आर गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड ऑल दिस डिफरेंट सिटीज सर्विसेज इनटू वन थिंग। तो हमने एक चीज को नहीं पकड़ना, हमने सब चीज को बैलेंस करना है। सर हम आप कहते हैं कि मतलब हमारे पास मतलब उस टाइम पे क्वालिफाइड मतलब पीपल नहीं थे, तो इस वजह से हमारी कंडीशन ज्यादा मतलब खराब हुई। मैं नहीं कहता ये 1965 की पब्लिश रिपोर्ट बाय द टेक्निकल पर्संस ने पब्लिश किया ये रिपोर्ट, जिन्होंने ये कहा है। मैंने नहीं कहा, 1965 में मैं नहीं था, मुझे नहीं पता, मैंने तो पब्लिश मटेरियल पढ़ना है। लाइक फर्स्ट डिपार्टमेंट 1965 में बना है सर। 1960s में बना है यूटी लाहौर में पहला डिपार्टमेंट जो प्लानर्स को प्लानिंग की डिग्री देता था, पीपल हु वर क्वालिफाइड इनफ टू डिजाइन अ सिटी, नॉट अ बिल्डिंग, अ सिटी। और सर अब मतलब कितने लाइक इस्लामाबाद इज अ सिटी, लाइक मतलब आप पीएचडी ऑफर करा रहे हैं सर अर्बन प्लानिंग में, लाइक एक नस्ट है और लाइक एक यूटी लाहौर बस। यस, आई डोंट नो पेशावर में करवा रहे हैं पीएचडी के नहीं, लेकिन हाँ यूटी में और इस्लाम नस्ट में पीएचडीज होती है अर्बन प्लानिंग में। यस, मेरान यूनिवर्सिटी में भी है। किसमें? मेरान यूनिवर्सिटी जामशोर है। यस सर। हाँ, प्रोबेबली हो, मुझे नहीं आइडिया, प्रोबेबली हो। यस अरबाज। सर 1992 से एमएस पेशावर यूनिवर्सिटी में भी स्टार्ट हो गया था, फिर 2014 में 10 में जो है ना बीएस स्टार्ट हो गया। लेकिन सर ये हम उसको क्यों काउंट फॉर कर रहे हैं? हमारी तो हालत अभी भी उसी तरीके से ख़राब है, कोई टेक्निकलिटी वे पे हम कोई मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, ना कोई अच्छा बन रहा है उस लेवल पे जिस तरीके से बनना चाहिए। बात आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आगे जाके मैं एग्जांपल भी दूंगा, बिकॉज वी डोंट हैव क्वालिफाइड पर्सनल। अभी भी अब लोकल गवर्नमेंट की पोस्टें जाके देखें, अर्बन प्लानिंग की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, कोई हायर ही नहीं करता, या हायर अगर कोई कर रहा है तो बेसिकली इट इज गिवन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिविल इंजीनियर और एन आर्किटेक्ट। प्लानर्स तो फील्ड में मिलेगा ही नहीं आपको। या प्लानर मुझे बताएं, कोई अनएम्प्लॉयड प्लानर्स आपको कितने मिल नजर आते हैं इन कंपैरिजन टू इंजीनियर्स? या गवर्नमेंट की जॉब प्लानिंग को इतनी आसानी से क्यों मिल जाती है? प्लानिंग को गवर्नमेंट की जॉब क्यों आसानी से मिल जाती है? मोस्ट ऑफ यू, आप गवर्नमेंट की ऑप्शन आपको मिली होगी और आपने शायद ना चूज की हो। आई एम टॉकिंग अबाउट प्लानर्स। नहीं सर, इतना भी नहीं है जितना आप खैबर पख्तूनख्वा में जाएं तो सर गिने चुने बंदे मिलेंगे। इवन इस्लामाबाद के सीडीएस में भी जो है ना आपको मैक्सिमम 14 या 17 है मेरे ख्याल में पूरे सीडीए में, पूरे इस्लामाबाद के लिए टाउन प्लानर्स, जो वो को भी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे आ ही नहीं सकते। इवन वो डॉक्यूमेंटेशन हद तक ही बस। देखिए ना, आप जो बात कर रहे हैं, आप बेसिकली बात कर रहे हैं प्लानर्स की पेनिट्रेशन इनटू गवर्नमेंट सेक्टर्स और उनकी प्लानर्स। पंजाब में या में ये लॉ में इनकॉर्पोरेट हो चुका है कि प्लानर हर तहसील में होगा, हर लेवल ऑफ हायरार्की में होगा। तो जब वो होगा तो फिर ही आपके इम्पैक्ट आस्ता आस्ता आना शुरू होंगे। जब आपकी अभी केपीके में एटलीस्ट अभी तक पेनिट्रेशन नहीं है, नाउ सिस्टम हैज बीन इवॉल्विंग, और केपीके में भी पोस्ट्स आएंगी। सो देन अगेन यू विल बी लाइक एबल टू, जब पोस्टें बनेगी, क्रिएट होंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो मे भी सिस्टम आस्ता आस्ता ठीक होता है। एकदम मैं 100 बंदा हायर करने से मैं सिस्टम नहीं ठीक कर सकता। एक शहर है वो 10 साल 20 साल में नहीं बना, उसकी हिस्ट्री है, 500 साल पुराना शहर है, उसको डेवलप करते हुए या रीडेवलप करते हुए बहुत टाइम लगता है। यस सर पास। आई थिंक सर हम प्लानर्स जो है ना से पूरी कम्युनिटी या पूरा पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। ये अगर 19s में चले जाएं तो फिलैंथ्रोपिस्ट थे जो वो सिटीज़ के लिए सोचते थे और इस तरह के काम करते थे जो मतलब
उन लोगों को कोई प्लानर्स नहीं ना क्वालिफाइड थे, बस उनकी थिंकिंग चेंज थी और डेवलपमेंट सेक्टर और हेल्थ इश्यूज उस चीज़ को देखते थे। तो मैं तो समझता हूँ कि मतलब कम्युनिटी को हम जो है ना, बजाय इसके कि हम टाउन प्लानर पे ही फिक्स हो जाएं, हमें कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए बजाय इसके कि हम पोस्ट में या कोई नेचर में लोगों को या डेवलपमेंट सेक्टर में लोगों को चेंज कर लें। वो नॉन प्लानर हो, ज़रूरी नहीं है कि वो प्लानर हो, लेकिन उसकी सोच जो है ना वो टुवर्ड्स डेवलपमेंट और टुवर्ड्स बेटर लाइफ होनी चाहिए। प्लानिंग का डिसीजन नहीं होना चाहिए बेसिकली, आपका ये पॉइंट है। ओके, यस अहमद, यू वांट टू ऐड समथिंग? यस सर, मैं ये बात करना चाहता था कि सर आज़ाद कश्मीर के केस में तो सर ये जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होते हैं सर, उसमें तो सर जर्नल सर वो लोग हायर कर लेते हैं सर, नॉन टेक्निकल पर्सन लाइक सर जिसने एमबीए किया हुआ सर उसको हायर कर लेंगे सर प्लानिंग डिपार्टमेंट में सर। और सर मतलब आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि सर वो बेसिक ट्रेनिंग के लिए जहाँ बाहर जाते हैं सर, ये जो आप हमें चीज़ें पढ़ा रहे हैं सर, ये जो चीज़ें आप हम मतलब हम पढ़ रहे हैं सर, इस ट्रेनिंग के लिए सर वो उनको बाहर के ममालिक में भेजते हैं सर। तो मतलब ये भी इशू है कि सर नॉन टेक्निकल पर्सन को अभी भी हायर किया जा रहा है सर प्लानिंग डिपार्टमेंट्स में सर। Yes, got your point. Okay, let's go back to the lecture. I want to quickly continue. Okay, then in 70s, Development Act was initiated, in which आपकी जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनना शुरू हो गई थी। These are the names of different agencies जो एक ही एरिया में ऑपरेट कर रही हैं। ट्रेडिशनल सिटी में ये सारी चीजें एग्जिस्ट, मोर और लेस एग्जिस्ट करती हैं, बड़े शहरों में स्पेशली। तो ये डिफरेंट चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, डिफरेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और जिनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, एरियाज ऑफ जुरिस्डिक्शन फर्क है। तो आप इनकी कोऑर्डिनेशन कैसे बनाएंगे? जब मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो हाउ विल यू मैनेज इट? लाइक इन अभी तो कैंटोनमेंट बोर्ड्स में आई डोंट थिंक प्लानर्स आर हायर्ड और प्लानिंग पोजीशंस, जबकि सीडीएस में ये प्लानर बैठे होंगे, सीडीजीस में कोई और प्लानर बैठा होगा। सो वेरिंग सिचुएशन। सो आई जस्ट गो थ्रू द डिफरेंट एक्ट्स, यू डोंट हैव टू आपने इसको रट्टा नहीं मारना कि कौन सा एक्ट क्या कहता है। बेसिकली जस्ट वांट टू हाईलाइट द राइट थिंग्स दैट cantonment board also highlight that building control is authority of cantonment boards and construction of different laws bylaws कैंट अपने खुद बनाएगा। इसी तरह सिटीज एक्ट में हर सिटी बड़ी सिटी में एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनेगी, उसका काम है डेवलपमेंट प्लान बनाना, बिल्डिंग कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन करना। डेवलपमेंट अथॉरिटीज, अगर आप किसी को कुछ समझ ना आ रही हो, दे कैन स्टॉप मी एंड रेज द हैंड। So development authorities also had the job responsibility of building control and developing a new spatial plan for the city. But development cities बाद में थी, TMS पहले exist करती थी, तो overlapping होना शुरू हो गई। And there is a debate कि development spatial plan या development plan बनाने की responsibility TMS की है, local government की है कि development authorities की है। अभी ये confusion है। अभी भी there is a debate which institution are responsible to create the overall development plan of the city. लेकिन डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल इन लाहौर LDA has a very strong power, so LDA usually makes a plan. लेकिन बाकी एरिया में जिस तरह मुल्तान वगैरह में अभी भी TMS are more strong, तो जिसकी वजह से MDA या दूसरी एरियाज में मसले आते हैं। अगेन there is a dispute के कौन मास्टर प्लान बनाएगा। यस अहीद सर, एक स्मॉल सा मैंने एक क्या कहते हैं एग्जांपल थी देनी कि मैंने रिसेंटली एक पीएम पोर्टल पे मैंने एक क्या कहते हैं कंप्लेन की थी जीटी रोड की ना। नहीं सर, आप क्यों? अच्छा चल तो सर वो मैंने क्या कहते हैं की कंप्लेन, तो वो कंप्लेन थी जो जीटी रोड का पोर्शन है वो नियर वेस्टेज का जो था एरिया। तो अब वो इंटरेस्टिंगली हुआ ये कि वो जो मतलब जो कंप्लेन थी वो कभी कैंटोनमेंट बोर्ड से कभी जाए क्या कहते हैं एनएचए में, कभी वो एनएचए से जाए म्युनिसिपल में, तो बस वो वहीं पे घूमती रही है, लेकिन वो कभी मसला हल नहीं हुआ वहाँ का। नहीं होता, ये एक टैक्टिक होता है कंफ्यूज करने का, ये एक टैक्टिक होता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का। जिसना रून ने भी हाईलाइट किया था कि कराची में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था फ्लड की, तो वो यही वजह थी। जब आप मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस कर लेते हैं किसी जगह पे,
तो everyone's responsibility is basically no one's responsibility. So इस तरह तो होगा. Okay, and then एक तो आपकी jurisdictions और आपके areas भी कई सारे क्लियर नहीं होते. ये एरिया किसके पास है? तो जब एक एरिया में कंफ्यूजन आता है, वो एरिया इतना सफर करता है कि उसकी रीडेवलपमेंट, जिस तरह आईजीपी रोड है इस्लामाबाद में, ना रावलपिंडी ओन कर रहा है ना इस्लामाबाद ओन कर रहा है, सो रोड तबाह हुआ हुआ. तो बेसिकली ये भी एक इशू होता है. जिस रोड्स की बात कर रहा हूँ जब एक्ट की ज्यादा बात होती है. ओके, एक्ट डेवलपमेंट एक्ट के मुताबिक सबसे पहली जो अथॉरिटी बनी थी एलडीए की बनी थी, उसके बाद एनडब्ल्यूएफ में बन गई थी. अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट ये चीजें सेटअप हुई थी डिफरेंट एरियाज, पिशावर में भी और एनडब्ल्यूएफ में, उस देन एनडब्ल्यूएफ भी. ओके ओके, कंटोनमेंट बोर्ड्स में बात करते हैं. ये हम किसकी बात, एक्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है, कंटोनमेंट बोर्ड का अपडेट्स आई, उसमें भी उसने कहा अब कंटोनमेंट बोर्ड्स को मजीद पावर्स दे दी गई, in which they are ready to execute their own development plan. They shall prepare and execute development plans. जो पहले डेवलपमेंट अथॉरिटी या टीएमए के बाद थी, हमने अब कंटोनमेंट बोर्ड को भी दे दी अथॉरिटी. ये लें, आप भी डेवलपमेंट प्लान अपना बनाएं. ठीक है, they will execute zoning, land use, सब कुछ दे दिया उनको. And they will be reporting, they will not be report, they are not, according to the act of cantonment board, they are not supposed to follow or they are not liable या लीगली बाउंड नहीं है टू फॉलो द रूल्स ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस. तो आप जब इंस्टीट्यूशंस पे आप अपना लेट्स से उस पर लीगली बाउंड नहीं होते, तो अगर वो जो आपकी लोकल एजेंसी जितना मर्जी अच्छा एफिशिएंट मास्टर प्लान बना ले, तो लोकल इंस्टीट्यूशन लीगली, अगर ये कंटोनमेंट बोर्ड्स, डीएचएस, they are not legally bound to follow the master plan. तो अगेन वो जो भी काम करेंगे वो मास्टर प्लान की वायलेशन में करेंगे. फॉर एग्जांपल लाहौर में मास्टर प्लान के मुताबिक ईस्टर्न साइड ऑफ लाहौर इज वेरी मच फर्टाइल एंड इट इज नियर टू द इंडियन बॉर्डर. टू सेफगार्ड द पीपल उन्होंने कहा कि हम ईस्ट की तरफ लाहौर में डेवलपमेंट नहीं करेंगे. मास्टर प्लान ने कह दिया, जो एलडीए ने नेस्ट पार्क के साथ मिलकर बनाया था. बट ऑन ग्राउंड क्या हुआ, डीएचए ने वो लैंड खरीदा क्योंकि वो प्राइम लैंड था, लाहौर के करीब था, उधर उन्होंने डेवलपमेंट की, स्कीम्स बनाई, एंड दे वर नॉट लीगली बाउंड कि उस पे मास्टर प्लान ऑफ लाहौर का इंपैक्ट आएगा. तो आपका मास्टर प्लान फेल हो गया, आपकी डेवलपमेंट सारी ईस्ट पे शुरू हो गई. तो आपका मास्टर प्लान जो विजन कर रहा था जी साउथ में होगी, वो सारा ईस्ट में डेवलपमेंट भी शुरू हो गई. तो लाहौर में जिन्होंने एलडीए एक्ट में, सॉरी एलडीए के मास्टर प्लान में था कि साउथ में नया एक हम एक बनाएंगे, कमर्शियल सेंटर बनाएंगे, सीबीडी, नई हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह साउथ में प्रोवाइड करेंगे. अब उनको क्योंकि पता चला कि डीएचए में बन गया, तो डीएचए का लोड भी इंफ्रास्ट्रक्चर का, वेस्ट मैनेजमेंट सारा आपका शहर बर्दाश्त कर रहा है, जो पहले प्लान किया हुआ था कि साउथ में सिर्फ डेवलपमेंट होगी. सो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की लीगली बाउंड ना होने की वजह से हर कोई अपने प्लान्स बना रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, लैंड एक्वायर कर रहा है, डेवलपमेंट करी जा रहा है. सो दिस इज वन एग्जांपल, एंड दैट आर नाउ दे आर एसोसिएटेड विद डायरेक्टरी ऑफ एमएलसी. In cantonment beds में they are like DAG is something separate. Let's move on. PLGO, the first local government ordinance which introduced devolution in Pakistan, जिन्होंने आपके setups बनाए. CDGs बनाई 5 major cities of Punjab. They are, उन्होंने CDGs की गवर्नमेंट बना दी, कहते हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट. मेन 5 शहर, कौन से शहर हैं? Anyone? 5 CDGs, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट. सर पंजाब की या पाकिस्तान की? पंजाब की. सर इसमें लाहौर है, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरावाला. इसमें आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी एग्जिस्ट करती है. यस निदा? ये कि जो पंजाब के उन्होंने 5 बता दी हैं. सर एक्चुअली मुझे आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है, इस वजह से समझ नहीं आ रही थी. अच्छा, किसी और को डिस्टॉर्ट हो रही है आवाज? नो सर. नो सर. Okay, so Nida, maybe I'll upload this to YouTube and then maybe you can listen from the YouTube and then maybe you can understand.
बिकॉज आपकी भी जब आप भी बात कर रही हैं, देयर इज अ डिस्टॉर्शन फ्रॉम योर एंड. ओके, Talukas, anyone? What is Taluka? Yes, Suhaib. Yes. Okay, anyone else? What is Taluka? सर तहसील को ही कहते हैं तलुका. कहाँ कहते हैं? सर सिंध में. Yes. तो सिंध में तहसील को तलुका कहते हैं. Okay, then I have distinguished between town and तहसील municipal administration. What is difference between town, TMA जो हम कहते हैं TMAs, तहसील municipal administration and town and तहसील. So what is the difference between town and तहसील municipal administrations? Yes, Shoaib. सर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है हमारे, उनमें जो बेसिकली हमने सब डिवीजन की हुई है उसको टाउन के लिहाज से की हुई, जैसे अभी आप डिस्कस भी कर रहे थे लाहौर के लिए, तो इसी तरह और बाकी जो है बाकी हमारे छोटी तहसील या टाउन्स में रीजनल एरियाज में है उनको हम तहसील कहते हैं. जो एरिया जो 5 मेट्रोपॉलिटन डिक्लेयर हो गए हैं उसमें जो आपके सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं दे आर कॉल्ड टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. और अगर वो 5 मेट्रोपॉलिटन जो मैंने ऊपर 5 मेजर सिटीज की बात की है उसमें नहीं है तो वो तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, बेसिकली सब डिस्ट्रिक्ट्स and UCs. Okay, for the first time ever, according to this Act 2001 के एक्ट ने जितनी भी तहसीलें हैं पाकिस्तान में उसमें 1 टाउन प्लानर मस्ट कर दिया. 1 टाउन प्लानर, 1 अर्बन प्लानर. Every तहसील must contain 1 अर्बन प्लानर. So according to this, आपकी टाउन शहर के अंदर जितनी टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील में जितनी तहसील ऑफ पंजाब में जितनी भी तहसीलें हैं उसमें 1 टाउन प्लानर होगा. तो पाकिस्तान में कितनी तहसीलें हैं पंजाब में? ओके, पंजाब में कितनी तहसीलें हैं? आई थिंक 36 है. 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. 37 मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट्स हैं आजकल. हर डिस्ट्रिक्ट में देख लें 3 या 4 तहसीलें हैं, तो उस तहसीलों से लगा लें आप जॉब. ओके, एट दैट टाइम 104 posts were created instantaneously. Okay, let's move on. According to this, CDGs, मैंने आपको बताया ये 3 हायरार्कीज हैं, ठीक है? CDGs, TMS और यूनियन काउंसिल. अब देखें, CDGs will approve master plan, land use plans. वो बनाएगा लैंड यूज प्लान, जोनिंग प्लान, CDGs बनाएंगे. एट द सेम टाइम TMS को भी आपने कह दिया TMS भी बना सकती हो. सो व्हाट हैपेंड? अच्छा, अब आपने दोनों अथॉरिटीज को दे दी है जोनिंग प्लान, डेवलपमेंट प्लान, स्पेशल प्लान बनाया, तो क्या है ऑन ग्राउंड किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन बनाएगा और कौन इंप्लीमेंट करेगा? देयर इज एन इशू. ओके, जब ओवरऑल इस प्लान में इशू ये आ गए कि आपने रूरल अर्बन को आपने रूरल अर्बन को ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं किया, एक्सेप्ट मे बी एडमिनिस्ट्रेटिवली देयर इज नो डिस्टिंक्शन. पूरा डिस्ट्रिक्ट जिसमें रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट है या लेट्स से गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट हमने डिक्लेयर किया या फैसलाबाद का पूरा डिस्ट्रिक्ट है, हमने वो उसको अर्बन डिक्लेयर कर दिया पूरे एरिया को. हालांकि अगर देखा जाए कि आपके आउटस्कर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट 12 बहुत ज्यादा रूरल है. आपके फैसलाबाद के तो जो शहर है इटसेल्फ तो आपने बेसिकली समुद्री और क्या है उधर तालागंग आई थिंक राइट तहसील है फैसलाबाद की, राइट? आपने उन सबको अर्बन डिक्लेयर कर दिया बेसिकली, लेकिन वो अर्बन नहीं है, फुली अर्बनाइज नहीं है. वो मे बी लाहौर डिस्ट्रिक्ट वाज द ओनली डिस्ट्रिक्ट वो जो मैक्सिमम अर्बन हो सकता था. लेकिन जो आपके बाकी 4 शहर थे जिनको आपने सिटी डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया, उसका मतलब है आपने वो उसको फुल अर्बन डिक्लेयर कर दिया. वो एक्चुअली में अर्बन नहीं थे पूरी, उनके अंदर कुछ डेंस एरियाज थे या बड़े एरियाज थे जो अर्बन थे. बाकी अराउंड 60% ऑफ द एरिया वाज स्टिल एग्रीकल्चर, लेकिन हमने सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में उसको फुली अर्बन डिक्लेयर कर दिया था. इस बार लेफ्ट क्या आपने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, अर्बन सर्विसेज. अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंट रूल्स सेटअप्स इंस्टीट्यूशंस को मिल गए कि आप अपने इस एक्ट के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के मुताबिक इंस्टीट्यूशंस वर बाउंड दैट दे कैन
develop a plan, and they can also create their own rules and regulations. And as per my knowledge, as of yet, KPK still follows this system. Arbaz, am I right? सर आपकी समझ नहीं आई सर. ओके, मैं कह रहा हूं कि ये केपीके में यही सिस्टम चल रहा है, सीडीजी, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाला. मुझे सर ज्यादा नॉलेज नहीं है इस लेवल पे खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में बहुत साल से काम कर रहा हूँ. इस तरह कोई इनपुट नहीं है. ओके, एज पर माय नॉलेज स्टिल वी आर एम्प्लॉयिंग दिस, लेकिन ऑन ग्राउंड पाकिस्तान और पंजाब में एक अगला एक्ट आ गया जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013. इसमें उन्होंने कहा सिर्फ लाहौर ही अर्बन एरिया, लाहौर इज द ओनली मेट्रोपॉलिटन इन पंजाब. अब यह थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, मे बी आपको यह थोड़ा सा क्लियर हो जाए. एनी अदर एरिया अदर देन लाहौर विल बी मैनेज बाय डिस्ट्रिक्ट. रूरल एरिया, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो रूरल एरिया है वो मैनेज करेगा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और अर्बन एरिया मैनेज करेगा म्युनिसिपल कमेटी या कॉर्पोरेशन. लेकिन लाहौर इज समथिंग डिफरेंट, लाहौर इज डिफरेंट. इसके मुताबिक आपने सिर्फ लाहौर को प्रायोरिटी दी है इस एक्ट के मुताबिक, बाकी सारे शहर आपके एक ही लेवल पर हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, दिस ऑर्डिनेंस. ओके, इसमें इन्होंने अब इसमें तहसील सिस्टम खत्म कर दिया. वो जो टीएमए सिस्टम में भी बोल रहा था ना, टीएमए सीडीजीज, इसमें सीडीजीज भी खत्म हो गई, टीएमए भी खत्म हो गई. इसमें इन्होंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और म्युनिसिपल कमेटी और कॉर्पोरेशंस आ गई. क्लियर? एनी क्वेश्चन? सर इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और उसके साथ जितनी भी तहसीलें थी उनकी अपनी अपनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एजेंसीज और जो भी एग्रीकल्चर एरिया था वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंट्रोल करती थी. ऐसे ही सर? इस तरह ही बोलो. इसमें पहले इस तरह नहीं था, पहले टीएमएस करती थी, टीएमएस सारा रूल करती थी, लेकिन अब ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे ले गए हम सारा कुछ उठा के. ओके, इसमें म्युनिसिपल कमेटी, कॉर्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तीनों के पास अथॉरिटी थी कि ये मास्टर प्लान बनाए अपना, सॉरी डिस्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन प्लान बनाए अपना, ये डेवलपमेंट प्लान. सॉरी, ये सालिया. सर अब तो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 भी आ गई है ना? अभी हम 2013 पे हैं, अब चलते हैं उधर पहुंचते हैं. ओके उधर. ओके, बेसिकली आपको एवोल्यूशन बता रहा हूँ, कंपेयर करना चाह रहा हूँ डिफरेंट सिस्टम्स को कि हम इस सिस्टम तक कैसे पहुंचे हैं. सबसे पहले बात कि 2013 का एक्ट हमारा ये एप्लीकेबल हुआ 2017 में. 13 में डिफाइन हुआ था, 17 में ऑन ग्राउंड शिफ्ट हुआ था. We have talked about this already. Okay, अब हमारा है कि अब हम कहते होंगे एक्ट चेंज हो गया, लेकिन हमारा अब एक्ट नया है 2019 का जो नवंबर से एप्लीकेबल हुआ, नवंबर 2019 से. इसमें हमने और चीजें बदल दी हैं. इसमें हम एक टाउन को ले आए हैं. पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी पहले भी थी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, अब एक टाउन की भी कंपोजिशन ले आए हैं. पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कमेटी में डिस्टिंक्शन नहीं थी, इसमें डिस्टिंक्शन आ गई है कि मेट्रोपॉलिटन. और इसमें ओके 2013 में लाहौर वाज द ओनली मेट्रोपॉलिटन. लेट मी रिटेरेट, 2001 में कितने मेट्रोपॉलिटन थे पंजाब के अकॉर्डिंग टू 2001 एक्ट PLGO? यस शोएब. 5 सर. 5. ठीक है. और 2013 में कितने हो गए? 1. और 2019 में कितने हो गए? 9. ओके, सो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ मेट्रोपॉलिटन्स की ये हम डेफिनेशन से खेल रहे हैं. अब हमें नहीं पता मेट्रोपॉलिटन किसको कहना है किसको नहीं कहना. जो मैं आपकी मेरी बात जो कर रहे थे टर्मिनोलॉजी में जो कंफ्यूज हैं, अभी भी हम कंफ्यूज हैं कि हमारे शहर बढ़ सकते हैं, कम कैसे हो सकते हैं. पहले 5 थे, फिर 1 हुआ, अब 9 हो गए. अगला एक्ट ऑर्डिनेंस आएगा, मे बी फिर 5 हो जाए. सो व्हाट इज दिस? बेसिकली इसको मैं बताना चाह रहा हूँ. ओके, अब जो डिस्टिंक्शन आई है उसमें कहा है कि अगर कोई अर्बन सेटलमेंट जिसकी पॉपुलेशन 2.5 लाख से ज्यादा हो, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन जाएगी. वहां जहां 75 से ज्यादा हो उधर म्युनिसिपल कमेटी बन जाएगी. और जहां टाउन
की पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा हो उसको टाउन डिक्लेयर करेंगे। ये अर्बन की पहले हमें पुराने एरियाज में, पुराने में ये डिस्टिंक्शन नहीं थी कि किसको आपने अर्बन एरिया कहना है, किसको टाउन कहना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी किसको कहना है। अब इस एक्ट में उन्होंने डिस्टिंक्शन लिए थे विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। और ये जो ऊपर ए से डी में बात कर रहा हूं, ये अर्बन एरियाज हैं, पूरे अर्बन, टोटली अर्बनाइज्ड हैं, जो डिक्लेयर्ड अर्बन एरियाज। उसके अलावा जितने एरियाज हैं अदर देन अर्बन एरियाज, दैट विल बी मैनेज बाय डिस्ट्रिक्ट या तहसील काउंसिल। अब हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को दोबारा ले आए वापस। ओके, अब क्या है इस एक्ट में, क्या है, एवरी लोकल गवर्नमेंट shall prepare a development plan. Okay, every government, ये जितने भी लेवल्स की हायरार्की आपको मैंने बताई है, everyone can make a development plan. इसका फायदा क्या हुआ है इस एक्ट का? क्योंकि ज्यादा कॉर्पोरेशंस बन चुकी हैं, तो उसकी वजह से हमारी सीट ज्यादा हो चुकी हैं। पाकिस्तान, पंजाब में एटलीस्ट प्लानर्स की सीट ज्यादा हो चुकी हैं नए एक्ट के मुताबिक, इस एक्ट 2019 के मुताबिक। जो अरबाज कह रहा था कि अभी तक इम्पैक्ट नहीं आ रहा, बेसिकली जब जॉब्स क्रिएट होंगी तो इम्पैक्ट आना शुरू होगा। तो पंजाब में उन्होंने सीट्स क्रिएट कर दी हैं प्लानर्स की। एनी क्वेश्चन? अच्छा, खुशबख्त, आर यू देयर? खुशबख्त? Yes, sir. Achha, I think you have question. You emailed me. I just saw the email last night. You emailed me about that PCAT me number, right? Yes, sir. Sir, I got the clarification from Sir Abdul Wahid, sir. Okay. So I just read the email last night, so I just remembered this before. Okay. Continuing. Yes, Mubashir. सर ये डिस्ट्रिक्ट/तहसील काउंसिल लिखा हुआ है। जी। तो सर इसमें जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो तो पता लग गया, लेकिन सर जो तहसील काउंसिल सर वो तो मर्ज नहीं होगी म्युनिसिपल कमेटी में या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? ये भी कंफ्यूजन है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की। उन्होंने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कुछ जगहों पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिवाइड हुई है तहसील काउंसिल में, और कुछ जगहों पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पूरा बना हुआ है। अभी तक वो टीएमए से ट्रांजिशन ही नहीं हो सकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कुछ एरियाज पंजाब में, इसलिए मैंने ये लिखा आपको। ओके सर। यस, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 2019 में हुआ था और 19 में फोर्स हो गया। तो एक्ट, डिफरेंट एक्ट्स ने डिफरेंट सीट्स क्रिएट की हैं प्लानर्स के लिए। सो अराउंड 2001 में 175 थी सीट्स, 2013 में 200 प्लस हैं, और 2019 में 300 प्लस हो चुके हैं। क्योंकि जितनी आपने इंस्टीट्यूशन ज्यादा बनाएंगी उतने प्लानर्स आर रिक्वायर्ड to manage that part of the city. So right now around there are 300 plus posts, or if we survey it, I don't think more than 100 are occupied right now. Because अभी ये 2019 में लॉन्च हुआ है, अभी आस्ता आस्ता ऑन ग्राउंड या इम्प्लीमेंटेशन या लेट्स से इसको मैच्योर होने में टाइम लगेगा, और हायरिंग में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। So this is the current situation of your act. नाउ इसमें जो बात की गई है, लोकल गवर्नमेंट्स के पास जो मास्टर प्लानिंग की पावर थी वो ले ली गई है कि आप मास्टर प्लान, किसी को अथॉरिटी नहीं दी गई वो मास्टर प्लान बनाए। अकॉर्डिंग टू दिस लोकल गवर्नमेंट से पावर ले ली गई है। अब यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो पंजाब का जो लोकल गवर्नमेंट 2019 का एक्ट है वो सिंध का जो करंट एक्ट है 2013 के साथ मैच होता है, बलोचिस्तान के 2010 के एक्ट के साथ मैच होता है, गिलगित के 2014 के मैच होता है, लेकिन केपी के अभी दूसरे सिस्टम पे है, PLGO 2001 के सिस्टम पे है। सो हमारी यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बात, मेरा क्वेश्चन ये है, हमारा प्लानिंग सिस्टम एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए डिफरेंट प्रोविंसेस में? एनीवन? प्लानर्स? यस, होना चाहिए। सर मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू साइट, और जोग्राफिकल डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। प्लानिंग जो इन्होंने डिफरेंसेस रखी हैं, मैं कहता हूँ कि इसी को कंटिन्यू रखें, लेकिन एटलीस्ट प्लानिंग के को इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे लेके जाएं। ठीक।
ठीक है अहमद। सर मेरे हिसाब से सर एक ऑर्गेनाइजेशन सर इनके भी ऊपर होनी चाहिए सर, जो कंट्री लेवल पे सर जो कि चेक एंड बैलेंस रखे इन सारे जो लोकल गवर्नमेंट्स बलूचिस्तान मतलब प्रोविंसेस और स्टेट लेवल पे सर, और साथ में सर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी रखे कि कहीं इनका इंटरलिंक होता है या किसी पॉलिसी मेकिंग में जहाँ ये एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, मतलब या सेम पॉलिसीज डिफरेंट एरियाज में अप्लाई कर सकते हैं, या कुछ ऐसी जगह होती हैं सर के इंटरलिंक्ड होती हैं, जैसे अब सीपैक के अंडर काफ़ी एरियाज आ रहे हैं, तो उनकी जो डेवलपमेंट है सर वो अगर डिफरेंट जो ये गवर्नमेंट्स हैं सर, लोकल गवर्नमेंट्स, इनका अगर आपस में इंटरलिंक होगा तो सर कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सकती है सर। तो मेरे हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन सर इनके ऊपर भी होनी चाहिए, इनको भी जो है ना वो चेक एंड बैलेंस और कंट्रोल करने के लिए सर। उसके लिए हमें 18th अमेंडमेंट को चेंज करना पड़ेगा, जो हम नहीं कर सकते 18th अमेंडमेंट पे, वो नहीं कर सकते हमने। उसके मुताबिक गवर्नमेंट प्रोविंशियल पावर गवर्नमेंट्स को अथॉरिटी दे दी गई है, उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ओके अब जो बात रह जाती है, ये तो मैंने PLU एक्ट बताया आपको, उसके अलावा एक्ट देखें या अथॉरिटीज देखें, आपको मैंने सिर्फ अभी बताई हैं CDGL, TMA, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह, और देखें और अथॉरिटीज कौन सी एग्जिस्ट करती हैं जो शहर में आपकी डेवलपमेंट पे फोकस करती हैं। आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आपका कच्ची बादी एक्ट, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी, DHA अथॉरिटी, मेट्रो अथॉरिटी, सेफ सिटीज अथॉरिटी, पंजाब पंचायत नेबरहुड काउंसिल एक्ट, नया पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, और आपके जहन में कोई आ रही हो नई अथॉरिटी? एनीवन? मैं एक ही बात कर रहा हूं, अभी मैं सिस्टम से बाहर निकला हूं, वो सिस्टम छोड़ के मैंने कहा आपको और भी बताऊं कौन कौन से एक्ट होते हैं एक शहर में अप्लाई होते हैं। सर वो जो थी ना सर जो 56 कंपनियां वो एक वजीर आला पंजाब जो फॉर्मर थे उन्होंने बनाई थी, तो सर उसमें भी काफ़ी सारी थी जो ओवरलैप करती थी इस तरह। उसमें सर एक PMDFC पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी, वो भी इनके साथ काफ़ी कोलेब्रेशन में चलती थी, और काफ़ी सारी हैं सर, मेरे भी माइंड में से नाम नहीं आ रहा सर। मतलब कि अभी आपकी बन रही है रिवर ड्राविड डेवलपमेंट अथॉरिटी इवन इन लाहौर। ओके एंड दैट रिमाइंड्स मी, जो क्वेश्चन था ताहा का वो था आई थिंक वो PMDFC ही थी जिन्होंने आउटलैंड डेवलपमेंट प्लान्स की अपडेटेशन की थी, वो PMDFC थी, पाकिस्तान म्यूनसिपल फंड समथिंग कंपनी। ओके सो व्हाट एक्ट डू वी नीड नेक्स्ट मे बी? ओके हमें एक्ट और अथॉरिटीज बनाने का बहुत शौक है, नई अथॉरिटी बना दो, हर चीज के लिए नई अथॉरिटी बना दो। तो अब कराची की बात कर रहे थे हम, कराची और लाहौर की, कि क्यों आपका मास्टर प्लान फेल होता है। डिफरेंट एजेंसीज जो एक दूसरे पर लायबल नहीं है एक दूसरे मास्टर प्लान को फॉलो करने में, तो आपका मास्टर प्लान फेल हो जाएगा। इंस्टीट्यूशन भी बहुत ज्यादा है। एक तो हम पहले बात कर रहे हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, वो अलग इशू है, मास्टर प्लान बनाना है नहीं बनाना वो अलग इशू है, उसकी इंप्लीमेंटेशन में देखें कितने इश्यूज हैं। ये इश्यूज थे इंस्टीट्यूशंस के। यस अहमद? सर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर एक सिंगल इंस्टीट्यूशन हो सर, पर उसके अंदर जो है वो सब डिवीजन करके डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया जाए, बजाय कि सर इंस्टीट्यूशन ही डिफरेंट हो सर। ये जो आपने बात की सर, ये मिसाल तो फिर इसमें आते हैं, अगर जिस तरह मतलब हमारी जिस तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं सर, जैसे हमारी आर्म फोर्सेस हैं सर, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स हैं सर, तो सर कोऑर्डिनेशन भी अच्छी नज़र आती है सर, और चीज़ें भी सही चल रही हैं। अगर हम इसको सिटी लेवल पे या प्रोविंस लेवल पे इस तरह की चीज़ें अप्लाई करें तो सर मेरे हिसाब से तो सर बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी सर। करने देंगे आपको सिस्टम चेंज? बात ये हर एक इतनी अथॉरिटीज होती हैं पावर। अच्छा बात ये है इंडिया इंडिया थी, आपके ख्याल में कौन सा सिस्टम बेस्ट था? PLU 2001, 13 के 19? Which system in your opinion was the best? Anyone? Okay, I think I'll just fast forward then. Okay, the main point is in the end, problem is that we don't have legal law, we don't have proper institutions, and we don't have enough policies. Policies और regulations के मुताबिक हमारे पास कोई मास्टर प्लान नहीं है, अच्छा अपनी प्लानिंग अप्रोच है नहीं है सही, हमारे पास जो लॉ है उस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट नहीं करता, हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, या इतनी मल्टीप्लिसिटी है, वो इश्यूज आते हैं। तो देयर आर सम कॉमन रीजंस
क्लैरिटी ऑन द प्लान, वीक कंटेंट्स या उसके थीमेटिक एरिया की कवरेज कम है, आपने सारे सेक्टर्स को इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ मास्टर प्लान में, आपने सही डाटा नहीं कलेक्ट किया, आपने डिजिटल एंड टूल्स इस्तेमाल नहीं किए, GIS प्रेडिक्शन मॉडलिंग नहीं की, एडवांस्ड न्यूरल नेटवर्किंग नहीं की, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट करके एनालिसिस नहीं किया, कंप्यूटिंग पावर बहुत की कम है, आपका विजन जो आपने सोचा था शायद वो मैच ही नहीं होता, वो प्रैक्टिकली नहीं है ऑन ग्राउंड, आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शंस आपने इतने डेवलप नहीं किए थे। ये सर बात सर थोड़ा सा वाइंड अप नहीं कर सकते क्योंकि सर वो चौकीदार बार बार आ रहा है, मैं एक ऑफिस में बैठा हूँ, कह रहे बस करें छुट्टी करें। चले आप जा सकते हैं ऑफलाइन, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग आफ्टरवर्ड, बस 5 मिनट का रह गया वैसे। देन देयर आर सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दैट वी आर नॉट इंक्लूडिंग ऑल द वेरिएबल्स, प्लानिंग के सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे, लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके अर्बन डिजाइन है, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग है, आपका ट्रांसपोर्टेशन एनवायरमेंटल प्लानिंग है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, क्लाइमेट चेंज आ गया, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्बन प्लानिंग आपने कंपोनेंट्स भी इंक्लूड नहीं किए वेरिएबल्स मास्टर प्लान में। इनएक्यूरेसी ऑफ फ्यूचर एस्टिमेशन, हमारी डाटा भी नहीं है तो गलत एस्टिमेशन भी है, प्रोजेक्शंस भी गलत हैं, डाटा एनालिसिस एडवांस डाटा एनालिसिस नहीं यूज करते हैं हम जो ऑन ग्राउंड है, हम अभी तक वो सिर्फ सर्वे मेथड लेते हैं, सर्वे करते हैं और बस चीज बना लेते हैं, प्लान बना लेते हैं। The world has moved on into more advanced techniques and projections. Data collection is expensive and unexpected changes पाकिस्तान में especially rapid crisis की वजह से कुछ भी change आ सकता है, and lack of basically there should be a lack of community participation and engagement, and our development is basically more donor driven than needs driven. हमें जहाँ फंडिंग आ रही है हम वो डेवलपमेंट करते हैं। Okay, and then insufficient skills, लोगों में skills नहीं है, faulty approach जो मैं पहले बात कर रहा हूँ, there are different approaches, processes, methodology and mechanisms, implementation is weak and legal backing is weak, and plan approval आपका होता होगा, master plan बनता कब है, approve कब होता है, that takes a long time, and we don't have financial model to execute our proposals. हम proposal तो बना देते हैं लेकिन हमारे पास इतना फाइनेंस ही नहीं होता जो हमने कभी प्लान ही नहीं किया होता, financial planning हमारी पूरी होती है। And just a quick update on this, I think we have also talked in class as well. Cantonment board में, PCB में कोई प्लानर नहीं, पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी में सिर्फ इस टाइम पे 8 प्लानर्स हैं पेशावर में, LD has 75 planners and CD has 15+, लेकिन I think there has been new hiring, so this data needs to be updated. So कोई CDA में जॉब कर रहा है, any planner? Anyone? अगर आपका कोई दोस्त है तो let me know. Updated data Yes sir. planners? Yes खुरम। सर ऑलमोस्ट 23 प्लानर्स है अभी वहाँ पे। 23 हैं, चलो ठीक है, 23 हो गया। ऑलमोस्ट 23 को या पूरे 23? सर 20 असल में सर 2 जो है ना वो हैं तो टाउन प्लानर लेकिन वो FS है, मतलब फील्ड सर्वे ऑफिसर्स हैं, तो वो काउंट नहीं होते। अच्छा, TMA PDMA के जो पेशावर की जो TMA है उसमें कोई प्लानर नहीं है, लाहौर की TMA में 15 प्लानर था। तो बेसिकली पॉइंट इज के इंस्टीट्यूशंस भी वो हैं, लॉज भी वही हैं, जो PDA भी डेवलपमेंट अथॉरिटी से बना है, LD भी डेवलपमेंट अथॉरिटी से बना है, इंस्टीट्यूशन सेम एक्ट से बने हैं लेकिन उन्हें हायरिंग अपनी मर्जी से की हुई है, अपनी मर्जी के प्रोफेशनल्स हायर किए हैं। ओके, लास्ट द पॉइंट इज हमारा जो मेन मकसद है ना, आई वुड अगेन लास्ट पॉइंट इज वी हैव टू डेवलप अ सिस्टमैटिक डायनामिक एंड स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशंस। हमारे इंस्टीट्यूशन इतने डायनामिक होने चाहिए, अपडेट होने चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्योंकि अर्बन प्लानिंग में एवोल्यूशन बहुत तेजी से आ रही है और डिसिप्लिन में नहीं आ रही, इतनी एवोल्यूशन सिविल इंजीनियरिंग में नहीं आ रही होगी जितनी एवोल्यूशन अर्बन प्लानिंग में है। डिफरेंट डिसिप्लिन में इतनी एवोल्यूशन नहीं, अर्बन प्लानिंग क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाती है, क्लाइमेट चेंज आ जाता है, बहुत ज्यादा चीजें जो इवॉल्व हो रही हैं।
आजकल पेंडेमिक आ गया, वो भी अर्बन प्लानिंग का पार्ट बन के, हाउ टू डिजाइन एफिशिएंट सिटी इन सच अ मैनर जहां पेंडेमिक रिस्क कम हो. सो इट इज अ पार्ट ऑफ नाउ प्लानिंग, और प्लानिंग के अंदर एक नई एक निकल चुकी है टर्म, हेल्दी सिटीज, हेल्दी हेल्थ डेवलपमेंट. सो इस पे भी काम हो रहा है. सो वी नीड अ सिस्टमैटिक, डायनामिक एंड स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशंस विद प्रॉपर टेक्निकल, लीगल एंड रेगुलेटरी सपोर्ट. लीगल लॉ होना चाहिए, रेगुलेटरी सपोर्ट में हमारे पास मास्टर प्लान या व्हाटएवर अप्रोच यू आर यूजिंग वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. हमारे इंस्टीट्यूशनल की कैपेसिटीज, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कैपेसिटीज इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि दे कैन इजीली अडेप्ट, हमें इतना रिजिड नहीं होना पड़ेगा. सो दीज आर सम कोर इश्यूज के ये करने की वजह से ऑफ कोर्स ऑन ग्राउंड इसकी इंप्लीमेंटेशन करना है, दीज आर वेरी क्वालिटेटिव टर्म्स. इसको क्वांटिफाई करके मेजर करना या इसको इंप्लीमेंट करना इटसेल्फ इज अ चैलेंज. किसको आप प्रॉपर सिस्टमैटिक या डायनामिक को वर्ड यूज करेंगे again, but the point is that we should be flexible enough to incorporate all the changes and regular updation. So this was today's lecture. Now I will invite questions, quick questions on this topic. Yes, Ahmed. सर ये जो आपने बात की कि सर हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है सर, तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सर ये चेंजेस कौन करेगा सर, किसके मतलब गवर्नमेंट लेवल पे ही सर मुझे तो लगता है सर होती हैं सर, पर आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सर कैसे हम इसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर, ये जो हमें सिस्टमेटिक और जो फेलियर नज़र आ रहे हैं और जो हमें मसाइल नज़र आ रहे हैं सर अपने सिस्टम में इंस्टीट्यूशन लेवल पे सर, तो इसको हम कैसे चेंज करें? रिसर्च से, अर्बन प्लानिंग के में रिसर्च करते हैं लोग इस पे, उससे होगा. यस ताहा. सर इसमें हमने काफ़ी सारे इदारे डिस्कस किए. एक इदारा जो मेरे ख्याल में यहाँ पे हमारी डिस्कशन में नहीं आया वो था फाटा सर, पाकिस्तान हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी. वो हमारी सर ऑलरेडी खिचड़ी में कहाँ पे फॉल करता है, उसकी क्या ड्यूटीज है? यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये ओवरलैप्स इतने ज़्यादा हैं कि आप इस तरह मैं कह लेता हूँ, आपका P&D डिपार्टमेंट भी है, प्लानिंग एंड अर्बन P&D, ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग PHUD समथिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट विंग, ये भी एक डिपार्टमेंट है. तो डिपार्टमेंट्स तो बहुत ज्यादा, ये तो मसला है, डिपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा हैं. लेकिन इज सिंगल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या सिंगल अथॉरिटी इनफ, और क्या होने देंगे हमारे इतनी जो डिफरेंट स्ट्रेटास ऑफ सोसाइटी हैं? क्या DHA या कैंट आपका सरेंडर कर देगा आपके किसी हायर अथॉरिटी के ऊपर अपना एरिया, या इवन वॉल्ड सिटी वाले या किसी और एरिया वाले? एनी अदर क्वेश्चन? अहमद सर कैंट वाले तो नहीं करेंगे क्योंकि सर वो उधर तो सर बस नो कमेंट, ठीक सेंसिटिव है. इंस्टॉलेशंस होती हैं सर. लेट्स उसके अलावा बात करें. कोई क्वेश्चन हो तो बताएं. जी सर, आपने वो जो बात की कि सर हम रिसर्च करके सर काम करेंगे सर. सर नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? कि वो रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन का मैंने पूछ रहा था कि वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मतलब किस तरह ये इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस सर होगा सर? प्लानर्स ही फील्ड में जाएंगे, once they are capable enough they can do it in the field. they know better which ways to approach and how to do that. Policy amendments ला सकते हैं वो बिल्कुल. Yes मुबशर. मतलब कि 2001 का जो एक्ट है, 2013 का या 19 का, इनमें से बेहतर कौन सा है? तो सर पर्सनली पूछ रहे हैं कि आप वैसे बेहतर जो 19 का है, क्योंकि सर मैं पर्सनली अपना व्यू दे रहा हूँ कि इसमें से मुझे बेहतर कौन सा लग रहा है सर विद लॉजिक सर. तो सर मुझे 19 का जो एक्ट है लोकल गवर्नमेंट का, वो मुझे बेहतर लग रहा है क्योंकि सर उसमें सेग्रीगेशन ज़्यादा है. जितनी ज़्यादा सेग्रीगेशन होगी उतनी ज़्यादा प्लानिंग एक्टिविटी बेहतर हो सकती है सर मेरे व्यू में. ओके, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ज़्यादा पोस्ट होने की वजह से ज़्यादा मैन पावर आएगी and they can like influence decision making as well. बिल्कुल ठीक है. लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो 2001 के एक्ट के मुताबिक प्लानर्स को इतनी पावर दी गई थी कि वो अपने डिसीजन ले सकें, लेकिन 2013 और 19 के एक्ट के मुताबिक ये पावर्स प्लानर्स से ले ली गई हैं. वो सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, डेवलपमेंट फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर सकते. जो 2001 में मास्टर प्लानिंग का वर्ड यूज हुआ था, 13 में और 19 में मास्टर प्लानिंग का वर्ड ही यूज नहीं हुआ हुआ. तो अगर उसको टेक्निकली देखना शुरू करूं मैं तो एक सेक्शन में एक गलती निकल सकती है.
So I mean that all depends then again, okay, how much critical you are to study impact of urbanization. So Mubashir, you want to add something more? Okay, yes Ahmed. सर फिर सर ये जो बनाते हैं सर ये एक्ट्स, तो सर उनमें सर टेक्नोक्रेट्स नहीं होने चाहिए सर? जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं गलतियां निकाल सकता हूं, तो इसका मतलब ये है कि सर ये सही तरह नहीं बना हुआ, जिस तरह मतलब आपके स्टैंडर्ड पे पूरा होता रहे सर। अगर प्लानिंग का सर कोई एक्ट है तो सर उसमें प्लानर्स कोई सर उसको डिजाइन भी करना चाहिए, बजाय कि सर कोई और उसको डिजाइन करे। बिल्कुल एग्री। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? यस खुशबख्त। सर ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है सर, ये एग्जाम सर नेक्स्ट वीक से कंफर्म है सर, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ हुआ? Okay, I'll ask this in the अगर question अगर lecture से नहीं है तो then I'll stop the recording and then we can ask frankly. Yes Nida, you have a question regarding lecture? Okay, thank you for the session. I'll stop the recording now. Thank you.